is solving students April 2007 सॉल्व कर रहे हैं. Following the trial balance on the books of Diksha Limited is on 31st March 2006. Land and building at cost, land and building at cost fixed asset, land machinery at cost fixed asset, motor car at cost fixed asset, goodwill at cost fixed asset, then salaries and wages, employees benefit, rent and taxes, other expense, traveling expense, other expense, printing stationery, other expense, motor car expense, other expense, repairs of machinery. If they say if it is to be capitalized, we'll add it to machinery. अगर revenue expense है ये students, then it will go to other expense. Stock, they have not given date, तो opening भी हो सकता है, closing भी. But trial balance में usually closing होता है students, ठीक है? Closing हुआ तो it will go to inventories. Opening हुआ तो it will go to changes in inventories. Debtors, trade receivables, cash and equivalent, bills receivable, trade receivable, 10% investments, non-current investments, interest on debentures, finance cost, advance tax for financial year 2004-5 and financial year 5-6, 2 साल का advance tax दिया है. See 5-6 मतलब current year. Why? Because trial balance का date ऊपर 31st March 2006 दिया है. So financial year 5-6 is current year for us and 2004-5 past year होगा. Share capital 50,000 equity shares of 10 each. Share capital 8% debentures, long term borrowings, provision for tax 2004-5 ये past year का होगा. Creditors, trade payable, bills payable, trade payable, general reserve, reserves and surplus, securities premium, reserves and surplus, capital reserve, reserves and surplus, profit and loss account, reserves and surplus, provision for depreciation, we'll draw fixed asset schedule, वहाँ पे लिखेंगे building, plant machinery, motor car, तीनों का लिखेंगे. Gross profit, revenue from operations, interest on investment, other income, sale of motor car है तो definitely उसका adjustment भी होगा. The very first adjustment is related to that motor car students. Motor car was sold on 1st April 2005. साल के starting में, at the beginning of the year it was sold. Cost of sold motor car was rupees 30,000. Accumulated depreciation on 1st April 2005 was 6,000 on the same. Okay, ये motor car से related है. That sale of motor car उस पे mark कर दो students. Last time भी मैंने ऐसा similar adjustment किया था. Depreciation to be provided on WDV at land and building 2.5%, plant machinery 10%, motor car 20%. So ये land and building, plant and machinery, motor car. If you want, you can put a mark over there. But इसका effect सब fixed asset schedule में जाता है students. हम लोग last time हमने बनाया था वो 10-11 columns का fixed asset schedule. Debtors includes debts due for more than 6 months. Put a mark on debtors. April 2007 solve कर रहे हैं. Plant and machinery includes machinery worth 20,000 purchased on 1st April 2005. Put a mark on plant and machinery. Debit side है ना, plant machinery at cost. Dividend is proposed. Students जब भी proposed dividend होता है तो हम लोग एक simple sentence record करते हैं in the end as a note. Okay, so कोई effect नहीं होता, कहीं plus minus नहीं करना है. Ignore tax on proposed dividend. Provision for tax is to be made at 40% on current year's profit. Okay, current year's profit. ठीक है. Debentures are secured by charge on land and building. Put a mark on debentures. Credit side पे third item है. Market value of investment is 1,80,000. Put a mark on 10% investment. Second last, third last item on debit side. उस पे एक mark कर दो. Interest on investment is due for 6 months but not received. Interest on debentures for 6 months is accrued and due. Authorized capital of the company is 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of 10 each. You are required to prepare profit and loss account and balance sheet. ठीक है students, profit and loss account and balance sheet बनाना है. तो again पहला हम अपना notes decide कर लेते हैं क्या क्या हमको करना है. Number 1 is share capital, हमको दिया है उन्होंने. 2 reserves and surplus. कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, यस. डिबेंचर्स था, नो लॉन्ग टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था, नो. ट्रेड पेबल था स्टूडेंट्स, कुछ क्रेडिटर्स वगैरह, बिल्स पेबल क्रेडिटर्स दोनों दिया था, सो दैट बिकम्स नंबर 4. अदर करंट लाइबिलिटी था स्टूडेंट्स, अदर
एडजस्टमेंट में तो है डेफिनेटली स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट में है. ट्रायल बैलेंस में था अदर करंट लायबिलिटी, आई डोंट थिंक सो. क्रेडिट साइड देखो है ना ट्रायल बैलेंस का स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स का बेसिक डेबिट साइड मतलब एसेट एंड एक्सपेंसेस, एंड क्रेडिट साइड मतलब या तो लाइबिलिटी या इनकम. तो क्रेडिट साइड पे तो आई डोंट थिंक सो देयर वाज अदर करंट लाइबिलिटी, बट एक एडजस्टमेंट में है स्टूडेंट्स. शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, वो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स वी सेट ऑफ ना स्टूडेंट्स. प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांस टैक्स दोनों दिया है ना, वो 90 कितना 70 एंड 72. एक जगह एडवांस टैक्स ज्यादा है. एंड 5-6 में कैसा है स्टूडेंट्स, 2005-6 2005-6 40%. अभी वो क्लियर नहीं है, हो सकता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन आए. चलो बाद में देखते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन. ओके जाने दो इसको, बाद में देखते हैं. देन फिक्स्ड एसेट, हाँ फिक्स्ड एसेट है, सो दैट विल बी नंबर 6. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नंबर 7. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस तो नहीं था पक्का. अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट एक एडवांस टैक्स का दिया है, ये 72 है एंड अदर वन इज 70 ना. क्रेडिटर्स प्रोविजन फॉर टैक्स 1 2 3 थर्ड आइटम 4 5 का यस. अदर नॉन करंट एसेट है स्टूडेंट्स नंबर 8. पहले भी एक बार मैंने किया ही है. करंट इन्वेस्टमेंट्स नॉट. इन्वेंट्री है यस नंबर 9. ट्रेड रिसीवेबल भी है 10. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी था ना, कैश बैंक बैलेंस यस, कैश अकाउंट तो था, बैंक बैलेंस नहीं. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस अभी तक तो नहीं है स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो. आगे एडजस्टमेंट में आए तो वो अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है. अदर करंट एसेट नो. प्रोविजन फॉर टैक्सेस टू बी मेड प्रोवाइडेड अदर करंट एसेट. सो इन ऑल 11 नोट्स हो गया बैलेंस शीट का. तो अगर इनकम स्टेटमेंट में जाना है तो विल स्टार्ट विथ नंबर 12. नंबर 12 अदर इनकम है यस 13. देयर इज नो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स. एक स्टूडेंट्स खाली स्टॉक दिया है उन्होंने, वो इन्वेंट्रीज में चला जाएगा. इन्वेंट्रीज में लिखा है नंबर यस. देयर इज नो कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स, नो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज कब करते हैं हम लोग, जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया होगा. यहाँ पे एक ही स्टॉक दिया है ट्रायल बैलेंस में, दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स. और उसका अनदर रीजन स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस में देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया है क्रेडिट साइड पे. ग्रॉस प्रॉफिट 4,10,000. इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन ना, दैट मीन स्टूडेंट्स उन लोगों ने ना ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हो चुका है इनकम स्टेटमेंट में. हाउ वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है, आपने मैनेजमेंट अकाउंट्स में सीखा होगा. सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आप क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों लिखा जाता है. इफ यू रिमेंबर, इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट योर मैनेजमेंट अकाउंट स्टूडेंट्स, हाउ वी गेट ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स माइनस COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एंड COGS में क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट, तो मतलब वो ओपनिंग क्लोजिंग रिकॉर्ड हो चुका है, सो देयर कैन बी चेंजेस इन इन्वेंट्रीज. एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस था स्टूडेंट्स कुछ, सैलरीज एंड वेजेस था देखो स्टूडेंट्स एक, सो दैट बिकम्स 14. फाइनेंस कॉस्ट था यस, इंटरेस्ट पेड. डेप्रिसिएशन का हम लोग सेपरेट शेड्यूल नहीं बनाते हैं स्टूडेंट्स. इन वेयर वी ड्रॉ बैलेंस शीट P&L बोथ. तो डेप्रिसिएशन कहाँ से आएगा, हमको फिक्स्ड एसेट से मिलेगा. वो ऑलरेडी हम लोग नंबर 6 बना रहे हैं, सो नंबर 6 से आ जाएगा. सो नो नीड टू ड्रॉ सेपरेट शेड्यूल फॉर दिस. लास्ट नंबर अदर एक्सपेंसेस 16. ये सब का स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट वगैरह का इसका नोट नहीं बनता. वी ड्रॉ नोट्स अप टिल अदर एक्सपेंसेस. सो इन ऑल हमको 16 नोट्स बनाने हैं. हो सकता है एडजस्टमेंट में कोई एक आध बढ़ जाए स्टूडेंट्स. सो इफ देयर इज जस्ट वन आइटम वी कैन डायरेक्टली एडजस्ट इट टू इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट. उसके लिए नोट नहीं बनाएंगे. So in all we have to draw 16 notes students, 16 notes बना. फिक्स एसेट मैंने ऑलरेडी बना लिया है स्टूडेंट्स, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग, उसमें कॉलम ज्यादा होते हैं, तो मैं हमेशा पहले बना लेता हूँ उसको. नंबर 1 हमने डिसाइड किया शेयर कैपिटल. ऑथराइज कैपिटल हमको दिया था स्टूडेंट्स, हाँ लास्ट में जैसे में दिया था हमको ऑथराइज. लीव 2 lines for that. Then issued, subscribed, paid up. Issued, subscribed, paid up सिर्फ इक्विटी कैपिटल है, प्रेफरेंस तो नहीं है, उसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है. तो जस्ट 1 line
में हो जाएगा. नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस. कितने रिजर्व्स थे स्टूडेंट्स? वी हैड जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, पीएनएल. 4 तो ये रिजर्व हो गया स्टूडेंट्स. ओके, सो 5-6 लाइन रखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7. थर्ड इज we decided long term borrowings. Long term borrowing एक ही था स्टूडेंट्स, डिबेंचर्स, एंड देयर वाज नो अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग. एक ही था स्टूडेंट्स. ठीक है, सो 2 लाइन में वो हो जाएगा. नंबर 4 we decided trade payables. क्रेडिटर्स भी था, बिल्स पेएबल भी था, एंड देयर वाज नो एडजस्टमेंट फॉर दैट. सो 3 लाइन में हो जाएगा. 1 2 3. 5 was other current liability. ट्रायल बैलेंस में तो शायद नहीं है, बट स्टूडेंट्स उसमें दिया, एडजस्टमेंट में डेफिनेटली है अदर करंट लाइबिलिटीज. नंबर 6 इज फिक्स्ड एसेट. स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट मैंने ऑलरेडी कॉलम जैसे बना लिए हैं. नंबर 6 फिक्स्ड एसेट. हियर वी राइट एसेट. एसेट का नाम आता है पहले कॉलम में. नेक्स्ट 4 कॉलम्स आर फॉर ग्रॉस ब्लॉक. ग्रॉस ब्लॉक का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग. नेक्स्ट 4 कॉलम्स आर फॉर डेप्रिसिएशन. उसमें भी ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग. लास्ट 2 कॉलम्स आर फॉर नेट ब्लॉक. नेट ब्लॉक मतलब WDV, ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, दैट वॉज नंबर 6. सो स्टूडेंट्स मैं यहाँ नंबर 7 कर देता हूँ इसको. नंबर 7 नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. नंबर 8 आई एम रिकॉर्डिंग ऑन द नेक्स्ट पेज. नंबर 8 था अदर नॉन करंट एसेट. 1 2 3. नंबर 9 वॉज इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज हमको एक ही दिया है, स्टॉक. नंबर 10 वॉज ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स में दोनों था ना स्टूडेंट्स, डेटर्स था, बिल्स रिसीवेबल था. डेटर्स का एडजस्टमेंट भी था, ड्यू फॉर मोर देन 6 months. ठीक है, 1 2 3 4 5 11. नंबर 11 was cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent. नेक्स्ट इनकम स्टेटमेंट में हमने नंबर 12 रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब रेवेन्यू अर्न फ्रॉम कोर बिजनेस एक्टिविटी. जो कंपनी का मेजर बिजनेस है उससे जो रेवेन्यू आया. अदर इनकम मतलब रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऑल सच इनकम्स आर रिकॉर्डेड. दैट इज नंबर 13. अदर इनकम दिया है स्टूडेंट्स हमको, अदर इनकम. नंबर 14 इज एम्प्लॉइज बेनिफिट. एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस. नेक्स्ट पेज पे आई विल ड्रॉ 15 स्टूडेंट्स. यहाँ पे डन बना रहा हूं मैं. नंबर 15 वॉज फाइनेंस कॉस्ट. फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड. स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड यहाँ पे आता है. एंड लास्ट फाइनली नंबर 16 अदर एक्सपेंस. ऐसा एक्सपेंस जिसका अपना हेड नहीं है, सो वी कैन से इट इज अ रेसिडुअल हेड. बाकी जो एक्सपेंस बचे सब यहाँ लिखने का. कुछ एक्सपेंस हैं, देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस व्हिच हैव स्पेसिफिक हेड्स. ऐसे एक्सपेंस है जिसका कोई हेड नहीं है, विल गो टू अदर एक्सपेंस. वी कैन से रेसिडुअल हेड. ओके, जो बचा वो यहाँ पे लिख दो. दैट इज नंबर 16. सो वी हैव ड्रॉन ऑल द नोट्स. स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग से. स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस. स्टूडेंट पहले ही हमको फिक्स्ड एसेट दिया, लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट क्लियरली मेंशन किया है स्टूडेंट्स. सो एसेट साइड पे लैंड एंड बिल्डिंग इट इज 4 लाख. सो ग्रॉस ब्लॉक में ओपनिंग कॉलम 4 लाख. नेक्स्ट क्या, प्लांट एंड मशीनरी अगेन एट कॉस्ट क्लियरली मेंशन किया. प्लांट
मशीनरी कॉस्ट ग्रॉस ब्लॉक होता है स्टूडेंट्स, सो ग्रॉस ब्लॉक कॉलम में हम लोग लिखेंगे 5,20,000। फाइनली क्या दिया उन्होंने स्टूडेंट्स हमको, फर्नीचर, सॉरी मोटर कार, मैं गलती से दूसरा क्वेश्चन देख लिया ऊपर वाला, मोटर कार एट कॉस्ट 1 लाख, मोटर कार। बट स्टूडेंट्स वेट, ध्यान से देखो, एक एडजस्टमेंट था मोटर कार का। सी मोटर कार एट कॉस्ट 1 लाख, बट सी रेफर द एडजस्टमेंट, क्योंकि उसका इफेक्ट एक ही है। एंड वेयर इट वाज, एडजस्टमेंट नहीं, दैट वाज रिलेटेड टू मशीनरी स्टूडेंट्स, भूल गया, मशीनरी से रिलेटेड था। सो नो नीड टू वरी, पहले मोटर कार लिख लूं मैं, मोटर कार 1 लाख। हाँ, मोटर कार सोल्ड का था स्टूडेंट, देयर वाज अ एडजस्टमेंट रिगार्डिंग प्लांट मशीनरी, रेफर दैट एडजस्टमेंट डी। प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स मशीनरी वर्थ 20,000 परचेज ऑन 1 अप्रैल। ये जो है ना आपको जो ये बैलेंस जो दिया है इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, आपको कुछ करना नहीं, ऑलरेडी इसमें है ना स्टूडेंट्स। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ देखो, एडिशन का मतलब क्या होता है, ग्रॉस ब्लॉक में एडिशन कॉलम मींस एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो परचेज कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो यू कैन इंक्लूडेड ईयर, तो मेक इट 5 लाख स्टूडेंट्स, इसको 5 लाख कर दो। I guess on why I made 5 lakh. Once again I repeat. See 5,20,000 trial balance में दिया है. Adjustment D says that plant and machinery include, already included है students. बट दिस इज ओपनिंग बैलेंस ना, तो ओपनिंग बैलेंस कॉलम में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस लिखो, उसमें परचेज कैसे लिख सकते हो, बिकॉज परचेज का तो वी हैव अ सेपरेट कॉलम। एडिशन का मतलब होता है परचेज ड्यूरिंग द ईयर, कोई नया एसेट परचेज किया है तो उसको एडिशन कॉलम में लिखते हैं ग्रॉस ब्लॉक का। सो व्हाई यू आर इंक्लूडिंग ईयर, आपने गलती की तो रेक्टिफाई करो। सो रिमूव फ्रॉम ईयर, तो 5,20,000 को मैंने 5 लाख कर दिया एंड 20,000 ईयर है रिकॉर्डेड। सो फॉर योर रेफरेंस मैं पहले ही सबका इफेक्ट भी लिख देता हूं यहाँ पे। एडजस्टमेंट नंबर डी था, ठीक है। हमने क्या किया, लेस फ्रॉम ग्रॉस ब्लॉक ओपनिंग, है ना, ओपनिंग से हमने 520 में से 20 माइनस किया, और सेकेंड इफेक्ट मैं नीचे लिख रहा हूं रिकॉर्डेड, फिर हमने क्या किया उसको रिकॉर्डेड अंडर एडिशन कॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड और कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका। सो एडजस्टमेंट डी हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, बेटर अभी सॉल्व कर लो, नहीं तो वो भूल ही जाएंगे हम लोग। ये 520 रखेंगे वापस 20 लिख जाएंगे तो डबल इफेक्ट हो जाएगा। दिस से ऑलरेडी इंक्लूडेड, तो अभी उसको अलग कर लो, ठीक है। सो हमने कॉस्ट वगैरह, हाँ गुडविल मैंने पहले भी देखो स्टूडेंट समझाया। डायरेक्टली इंटैंजिबल, फिक्स एसेट में जाओ, देयर इज अ सब हेड इंटैंजिबल, अगेंस्ट दैट यू कैन राइट गुडविल एट कॉस्ट 2,60,000, तो ये आपको ऑलरेडी 2,60,000 डायरेक्टली आप बैलेंस शीट में लिखो, हमेशा इंटैंजिबल डायरेक्टली यहाँ लिख लिया, ठीक है। सो गुडविल हो गया, यहाँ आपके रेफरेंस के लिए ब्रैकेट में अगेंस्ट इंटैंजिबल आई राइट गुडविल, ठीक है। सो इट डजंट गोज टू दैट शेड्यूल, हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, नेक्स्ट टाइम क्या है स्टूडेंट्स, गुडविल के बाद सैलरीज एंड वेजेस, अदर एम्प्लॉइज बेनिफिट में आएगा। अच्छा, वो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ रहेगा क्या, नहीं था स्टूडेंट्स, हमने कुछ पे कुछ मार्क भी नहीं किया। वेयर इज एम्प्लॉय बेनिफिट, नंबर 14 सैलरीज एंड वेजेस। मैनेजिंग डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन भी यहाँ आता है। हाँ, डायरेक्टर फीस के बारे में मैंने कहा था, अगर डायरेक्टर फीस है, परमानेंट डायरेक्टर है तो यहाँ लिखो salaries and wages 72,072, there is no adjustment, so outer column में हम लोग लिख लेंगे 72,000, ठीक है स्टूडेंट्स, डन। नेक्स्ट देन रेंट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस। रेंट एंड टैक्सेस नाम की ऐसी कोई भी चीज P&L स्टेटमेंट में नहीं है। ऐसा एक्सपेंस जिसका अपना कोई हेड नहीं होता है, एनी एक्सपेंस विच डजंट हैज इट्स ओन हेड, बेटर रिकॉर्डेड अंडर अदर एक्सपेंस। इसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं था। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगेन स्टूडेंट्स अदर एक्सपेंस 16 था, नो एडजस्टमेंट्स, आउटर कॉलम 16। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेशनरी 17। नेक्स्ट इज प्रिंटिंग स्टेशनरी के बाद क्या, मोटर कार एक्सपेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, कार से रिलेटेड है, दैट मींस फिक्स एसेट से रिलेटेड है, बट वी मस्ट बी केयरफुल। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो मोटर कार में हम लोग एडिशन कॉलम में लिखेंगे, है ना। हम लोग ऐसे ही करते थे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, ओके, तो यहाँ पे ऐड करना चाहिए, बट कुछ मेंशन नहीं किया है, सो दैट मींस इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस स्टूडेंट्स। जब तक वो लोग मेंशन नहीं करे ना, ऐसा अजम्पशन नहीं करने का। They have said expense, so we'll assume it to be revenue students. हाँ, अगर एडजस्टमेंट में लिखा है या ट्रायल बैलेंस में ही लिखा है कि दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो वी कांट रिकॉर्ड इन अदर एक्सपेंस, फिर ये एडिशन कॉलम में लिखना उसको, ग्रॉस ब्लॉक के एडिशन कॉलम में।
सेम वे रिपेयर्स ऑफ मशीनरी स्टूडेंट्स, रिपेयर्स दो तरह का हो सकता है, या तो रेवेन्यू हो सकता है या कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ मेंशन नहीं किया है तो उसको रेवेन्यू ही एज्यूम करने का, एंड रिकॉर्डेड ईयर 16500। हाँ, अगेन इफ दिस से कि नहीं ये रिपेयर्स ऑफ मशीनरी कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो यू मस्ट रिकॉर्ड अगेन एडिशन कॉलम में प्लांट मशीनरी के सामने लिखेंगे। स्टॉक, इन्वेंट्रीज, stock how much it is given students 94 ना, outer column there is no adjustment, so outer column। stock के बाद क्या है, debtors students trade receivable में आएगा। स्टूडेंट्स का वो एडजस्टमेंट है ना, ड्यू फॉर मोर देन 6 months, वो अभी सॉल्व कर लेने का, बिकॉज इट जस्ट अ पीस ऑफ डिस्क्लोजर। खाली आपको बताना है कहाँ पे था, वो लिखा ना डेटर्स। हाँ, एडजस्टमेंट सी देखो, डेटर्स इंक्लूड्स ड्यू फॉर मोर देन 6 months 20,000, सो हियर विल राइट डेटर्स लिखा हमने, ड्यू फॉर more than 6 months and others। ड्यू फॉर मोर देन 6 months कितना कहा है स्टूडेंट्स उन्होंने, 20,000, और डेटर्स टोटल हमको कितना दिया है, 1,45,000। सो स्टूडेंट्स 20 यहाँ लिखो, सो बैलेंस विल बी 125, बिकॉज टोटल 145 ही होना चाहिए ना जो ट्रायल बैलेंस में दिया, उससे ज्यादा तो नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, नेक्स्ट इज डेटर्स के बाद उन्होंने दिया है कैश, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इज गिवन एज 8,000, आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 30,000। $30,000। 10% investment students, it will go to other, sorry, non-current investment, ये number 7। 10% इन्वेस्टमेंट, वो देयर इज एन एडजस्टमेंट, बट स्टूडेंट्स वो खाली एक डिस्क्लोजर है, कुछ प्लस माइनस तो नहीं करना है। 10% इन्वेस्टमेंट कितना है, 150, 1,50,000। ठीक है। एडवांस टैक्स दे हैव गिवन अस फॉर फाइनेंशियल ईयर 4, 5, 5, 6, मतलब पास्ट ईयर का, करंट ईयर का। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने देखो वो इनकम टैक्स असेसमेंट का एडजस्टमेंट किया था। ओके, एट दैट स्टेज व्हाट आई सेड, इफ इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट इज गिवन, देन प्लीज past year का advance tax and provision for tax should not be recorded in notes. Instead of that we draw two equations, अगर आपको याद हो तो। But students यहाँ पे ऐसा कोई adjustment नहीं है। We have read all the adjustment right from number A till K, सारे adjustments हमने पढ़ लिए स्टूडेंट्स। वहाँ पे कहीं income tax assessment adjustment is not given, तो income tax assessment adjustment नहीं है तो हमको यहीं record करना पड़ेगा past year का भी amount। Advance tax for the financial year 4, 5 is 72, and provision for tax credit side पे देखो फोर्थ आइटम for 4, 5 is 70, so advance tax बड़ा अमाउंट है तो अदर नॉन करंट एसेट में आएगा। एडवांस टैक्स 2004, 2005 72,000। इसके अगेंस्ट में प्रोविजन फॉर टैक्स अगेन 2004-5 70,000, 72 minus 70 2,000। ओके, 5, 6 का हम लोग बाद में देखते हैं, बिकॉज 5, 6 का प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया है, नॉट इन ट्रायल बैलेंस, इट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, देन विल डिसाइड उसको सेट ऑफ कैसे करना है। ठीक है, अभी नहीं कर पाएंगे हम लोग। सो दिस इज डन, स्टार्ट विद शेयर कैपिटल। अच्छा स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स असेसमेंट एडजस्टमेंट वाज नॉट गिवन, इसके लिए हमने पास्ट ईयर का एडवांस और प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट कर लिया। एडवांस टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स से बिगर अमाउंट है तो इसके लिए अदर नॉन करंट एसेट में लिखा। ओके, नेक्स्ट क्या है, शेयर कैपिटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सो इश्यूड सब्सक्राइब में आ जाएगा 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सो 50,000 इंटू 10 करेंगे तो स्टूडेंट्स 5 लाख। ठीक है। 8% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग स्टूडेंट्स, 8% डिबेंचर्स अमाउंट गिवन इज 4 लाख। आउटर कॉलम वो एडजस्टमेंट है बट इट इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट है। वो प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया 4, 5 का, उसको तो जाने दो। सन्ड्री क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स, क्रेडिटर्स कितना दिया 90,000। ट्रेड पेएबल नेक्स्ट क्या है, बिल्स पेएबल 40,
जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व। तो स्टूडेंट्स पहले कैपिटल रिजर्व लिखते हैं स्टूडेंट्स, फॉर द सिंपल रीजन ये नॉन डिविजिबल है ना, तो पहले नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। अगेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज ऑल्सो नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। फिर इसके बाद हम लोग अपना जनरल रिजर्व लिख लेंगे, ठीक है। बट किसी भी रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो वी कैन रिकॉर्ड इट टू आउटर कॉलम। कैपिटल रिजर्व 180, सिक्योरिटी प्रीमियम इज कैपिटल रिजर्व इज 1515, आई एम सॉरी, कैपिटल रिजर्व 15,000, सिक्योरिटी प्रीमियम 20, जनरल रिजर्व इज 1,80,000। ओके, एडजस्टमेंट नहीं है रिजर्व से रिलेटेड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 1 April, 1 April मतलब ओपनिंग बैलेंस, सो प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग बैलेंस, हाउ मच ओपनिंग बैलेंस दे हैव गिवन, 55,000 इनर कॉलम, क्योंकि अभी करंट ईयर का प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन 1 April, अगेन 1 April 2005 मतलब ओपनिंग, बिकॉज ट्रायल बैलेंस मार्च 2006 का है, सो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन ओपनिंग बैलेंस, सो लैंड एंड बिल्डिंग का 40 दिया है उन्होंने, प्लांट एंड मशीनरी 130, सॉरी, एंड मोटर कार हाउ मच दे हैव गिवन स्टूडेंट्स, आई थिंक 10,000 है ना, या 10,000। Gross profit revenue from operations, gross profit revenue from operations, number 12, gross profit revenue from operations 4,10,000 outer column. Interest on investment students, other income, but students इसका एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैं इसको इनर कॉलम में लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, मैंने शॉर्ट में INVT लिख दिया। हाउ मच इट इज गिवन, 7,500, इसका एडजस्टमेंट दिया है स्टूडेंट्स। फाइनली सेल ऑफ मोटर कार, वो अभी कहीं नहीं रिकॉर्ड करेंगे, नोट्स में नहीं आएगा, उसका वर्किंग नोट करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो पोस्टिंग सब डन हो गया, पूरा ट्रायल बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब पोस्टिंग से अब वी आर स्टार्टिंग विद स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट्स, ये सारी पोस्टिंग्स होती है, ये मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट नंबर ए से कर रहे हैं स्टार्ट। एडजस्टमेंट ए, लास्ट टाइम भी ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट मैंने किया था। मोटर कार सोल्ड ना, तो व्हाट वी डू, ओरिजिनल कॉस्ट जो भी मोटर कार का दिया, कितना दिया वहां, कॉस्ट ऑफ सोल्ड मोटर कार वाज 30। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, आज तक का डेप्रिसिएशन, वहां पे 1 April बोला है, दैट मीन 1 April तक का डेप्रिसिएशन। हाउ मच इट इज, 6,000। तो 1 April का WDV हो जाएगा 30 - 6 24। बेचा कितने में, ट्रायल बैलेंस में जाओ, सेल ऑफ मोटर कार 35, WDV 24, आपने बेचा 35 में, सो डेफिनेटली गेन हुआ, प्रॉफिट हुआ 11,000 का। आगे सुन में आप इफेक्ट्स देना है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे एडजस्टमेंट किया था। ये जाएगा आपका ग्रॉस ब्लॉक डिडक्शन कॉलम, क्योंकि आप कार बेच रहे हैं। ये जाएगा डेप्रिसिएशन का, अगेन डिडक्शन कॉलम में। ये भूल जाओ स्टूडेंट, सिंपल रीजन, ये WDV है, हम WDV सिर्फ ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइंड करते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई WDV नहीं है, WDV ऑफ एसेट सोल्ड, ऐसा कोई कॉलम नहीं है। वी हैव, ये डिडक्शन का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड। This reduction means depreciation on assets sold, but there is no such column under net block, है ना, तो इसके लिए वो WDV नहीं आएगा। सेम वे यहाँ पे सेल करके कोई कॉलम नहीं है, तो सेल का भी इफेक्ट नहीं आएगा। बचा गेन, ये गेन है तो अदर इनकम में जाएगा, और अगर स्टूडेंट्स लॉस आएगा तो अदर एक्सपेंस में लिखना है हमको। तो स्टार्ट ग्रॉस ब्लॉक में डिडक्शन कॉलम, मोटर कार हमने बेचा है, उसका कॉस्ट 30,000 जो हमने बेची है कार। 6,000 provision for depreciation, deduction column, and other income में जाएं स्टूडेंट्स, other income gain, यहाँ पे चाहिए एक लाइन और है, profit on sale of motor car, कितना प्रॉफिट आया हमको, 11,000। सो दीज, एक इफेक्ट यहाँ आया, other income, ग्रॉस ब्लॉक डिडक्शन, डेप्रिसिएशन डिडक्शन, एंड दिस इज द वर्किंग नोट। लास्ट टाइम भी ऐसा सिमिलर एडजस्टमेंट मैंने किया था। सो एडजस्टमेंट ए हमने सॉल्व कर लिया। सेल ऑफ मोटर कार विच वाज गिवन इन ट्रायल बैलेंस विच आई इग्नोर्ड,
अब उसका इफेक्ट्स हो गया, अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो। अब ऐसा मत सोचना कि सर आपने उसको कहीं रिकॉर्ड ही नहीं किया, मैंने उसका नेट इफेक्ट्स, सेल ऑफ मोटर कार जो 35 था ना, उसका ऐसा सब नेट इफेक्ट्स करके मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सो दैट इज द मीनिंग, ठीक है। तो सेल ऑफ मोटर कार के बारे में सोचना छोड़ दो स्टूडेंट्स, ओके। Next students, adjustment number B is totally related to depreciation. Depreciation to be provided on written down value. Again पहले WDV डिसाइड करना है हमको स्टूडेंट्स के, WDV क्या होता है, ठीक है, पहले वो देखते हैं। ये एडजस्टमेंट नंबर क्या है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर B है। सो आई एम डिस्कसिंग नाउ एडजस्टमेंट B। स्टूडेंट्स सिंपल मीनिंग क्या है, जब भी बोलेगा ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है WDV पे, मतलब ओपनिंग WDV पे, तो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, एक एक करके। पहले लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखो लैंड एंड बिल्डिंग ये रहा 4 लाख ओपनिंग देखने का, इसका डेप्रिसिएशन 40, तो आपको आ गया WDV। देन मल्टीप्लाई बाय द परसेंटेज विच दे हैव गिवन, कितना परसेंटेज दिया है 2.5, तो ये बिल्डिंग का आ जाएगा। सेम वे प्लांट मशीनरी स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है हमको WDV पे, प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम, ठीक है। अभी स्टूडेंट देखो यहाँ गलती हो जाएगी, अब क्या करोगे आप 5 लाख लोगे, नहीं मैं बताऊं पूरा लूंगा 5,20,000। व्हाई स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर जो D मैंने कहा था ना, प्लांट मशीनरी इंक्लूड्स मशीनरी वर्थ 20,000, तो ठीक है आपने उसको अलग से लिखा, बट देखो परचेज कब किया था, उसकी डेट देखो एडजस्टमेंट D में, इट वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2005 और ट्रायल बैलेंस 2006 का है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट आप जो बना रहे हैं वो मार्च 2006 की। एसेट, ये एसेट मशीनरी जो परचेज किया था 2005 अप्रैल 2005, और आपका ये जो सब वर्किंग हो रहा है 31 मार्च 2006 को हो रहा है। दैट मीन्स यू हैव यूज दिस एसेट फॉर द एंटायर ईयर, है ना स्टूडेंट्स, पूरा साल यूज किया, तो इस पे भी तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। इसके लिए आई एम रिकॉर्डिंग 5,20,000 स्टूडेंट्स, आ गया ये 5 लाख एंड दिस 20, देन सब्ट्रैक्ट दिस 1,30,000, तो 5,20,000 माइनस 130 करेंगे तो आपको 3,90,000 आएगा इनटू 10%। रीजन समझ में आ गया। सो बेस्ड ऑन द डेट वी डिसाइड द डेप्रिसिएशन ऑन फ्रेश परचेज। अगर ये मिडिल ऑफ द ईयर परचेज करेगा तो आप मंथ्स काउंट करते कि कितना मंथ्स हो गया। जस्ट एन एग्जांपल, अगर 1 अक्टूबर को परचेज किया है तो 6 महीना होता है, 1 जनवरी को परचेज किया 2016 को, सो 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करते, बट वहां पे क्लियर लिखा इट वाज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2005, वी आर ड्रॉइंग फाइनल अकाउंट्स फॉर 31 मार्च 2006, तो 1 अप्रैल 2005 मतलब स्टार्टिंग डेट को परचेज किया, स्टार्टिंग डेट से 31 मार्च 2006 मतलब पूरा साल हो गया, तो यू हैव टू चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर द फुल ईयर ऑन दिस 20,000 ऑल्सो। इसके लिए इसको दोनों को टोटल लिखा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मोटर कार, हाँ देखो ये इसका ध्यान से स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे एडजस्टमेंट किया था, ये 1 लाख है, नो डाउट अबाउट दैट, सॉरी 1 लाख है स्टूडेंट, मैंने 10 लाख लिख दिया, माइनस ये मोटर कार कब बेचा था स्टूडेंट्स, मोटर कार वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2005, ये वाली कार। तो जो कार आपने साल के शुरू में 1 अप्रैल 2005 को बेच दी, तो क्या उस पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे स्टूडेंट, सिंपल है, नहीं चार्ज करोगे, बिकॉज फाइनल अकाउंट्स बन रहा है 31 मार्च 2006 को, और आपने ये कार बेच दी 1 अप्रैल 2005 को, ठीक है, ओपनिंग डेट को ही बेच दिया, सो दिस कार वाज नॉट यूज एट ऑल ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो 30 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1 लाख माइनस 30 70,000, दिस इज फॉर कार। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सेम वे, ये 10,000 सारी कार का है, बट उसमें से एक 6,000 वाली कार डेप्रिसिएशन वाली कार बेच दी, तो दिस इज 4,000, so 70 minus 4, 66,000 is the WDV, and on that we have to charge depreciation at 20%. ये सब एडजस्टमेंट आप लोग करते थे, बट वो टी फॉर्म में बैलेंस शीट बनाते थे स्टूडेंट्स, ऐसा शेड्यूल नहीं बनाते थे, तो स्टूडेंट्स को इससे कंफ्यूजन होता है। ओके, सो 3,60,000 का पहले 2.5% बिल्डिंग का, 3,60,000 इंटू 2.5%, इट कम्स टू 9,000। कुछ नहीं का है तो समझो हम पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, 39,000, 66 इंटू 20%, 13,200 हो गया स्टूडेंट्स।
ये अभी तीनों को कहाँ लिखेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन एडिशन कॉलम। ये एडिशन कॉलम का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, ध्यान रखना, ठीक है। डेप्रिसिएशन में जो एडिशन कॉलम होता है ना, दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर द करंट ईयर, जो हमने कैलकुलेट कर लिया 9, 39 एंड 13 200। अब इसका टोटल भी कर लेते हैं स्टूडेंट्स अभी, ताकि इसका सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में चला जाए। 13,200, 39 एंड 9, तो टोटल कम्स टू 61,200। तो स्टूडेंट्स ये पीएनएल में जाने का, और ये डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन है ना, इसके सामने 61,200। आगे समझ में। एग्जाम में स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट, देखिए ना पूरा फाइनल अकाउंट्स 20 मार्क्स के लिए, और ये शेड्यूल भी बनाओ। और आपने हम लोग ऐसा क्वेश्चन करेंगे वेयर देयर वाज 8 मार्क्स का ओनली दिस फिक्स एसेट शेड्यूल अलोंग विद दिस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो इसको लाइटली मत लेना, इसको समझो हाउ वी डू दिस थिंग्स, ओके। क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम ऐसा कर रहे हो, कभी फाइनल अकाउंट्स में पहले ऐसा कभी किया नहीं है। तो स्टूडेंट दिस टोटल हमने किया, इट कम्स टू 61,200, ठीक है। ये हो गया। सो एडजस्टमेंट ए भी हो गया, बी भी हो गया। सी वो डेटर्स इंक्लूड्स ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स ऑलरेडी डन। डी भी हम लोग कर चुके हैं स्टूडेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स मशीनरी वर्थ 20,000 परचेज ऑन सो एंड सो, वो भी हो गया। नेक्स्ट क्या दिया है स्टूडेंट्स उन्होंने हमको, देखो नेक्स्ट क्या पढ़ा, डिविडेंड इज प्रपोज फॉर द ईयर एट 10%। सो डिविडेंड प्रपोज जो होता है ना स्टूडेंट्स, उसका हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंपल सा वर्किंग नोट रिकॉर्ड करते हैं ना स्टूडेंट्स हम लोग। तो उसका वर्किंग नोट रिकॉर्ड कर लेंगे अभी, जस्ट स्टूडेंट्स 1 मिनट। हाँ, एडजस्टमेंट नंबर क्या है, ये एडजस्टमेंट नंबर ई है ना, सॉरी यहाँ नहीं लिखते हैं एडजस्टमेंट नंबर, हम लोग क्या करते हैं, हाँ एक नोट बिलो ऑल द नोट्स वी राइट डिविडेंड क्या लिखा है, डिविडेंड इज प्रपोज फॉर द ईयर। सो लिखेंगे हम लोग डिविडेंड प्रपोज्ड, कितना कहा है मैंने स्टूडेंट्स, एट 10%। सो शेयर कैपिटल का 10% एट द रेट ऑफ 10%। सो 5 लाख जो हमारा शेयर कैपिटल है इंटू 10%, सो 50,000। ये ऐसे एक नोट करके हम लोग लिख लेते हैं लास्ट शेड्यूल के बाद, मतलब हमारा लास्ट शेड्यूल 16 है तो उसके बाद लिखा, ठीक है स्टूडेंट्स। नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट, नेवर, कभी सेकेंड इफेक्ट मत सोचना इसके बारे में। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स इज टू बी मेड एट 40% ऑन व्हाट स्टूडेंट्स, वहां देखो 40% ऑन व्हाट, करंट ईयर प्रॉफिट, ऐसे ही कहा है ना। क्या अभी आपको करंट ईयर प्रॉफिट पता है क्या, नहीं। करंट ईयर प्रॉफिट कब मिलेगा, जब आप इनकम स्टेटमेंट क्लोज करोगे, इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे, जब भी आपको प्रॉफिट पता चलेगा। सो राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉफिट द कंपनी विल अर्न, ठीक है। सो अभी मैं प्रोविजन फॉर टैक्स कैलकुलेट नहीं कर सकता। सो नंबर एफ को अभी जाने दो, करेंगे नो डाउट अबाउट दैट, बट बाद में करेंगे। आई एक्सप्लेन द रीजन व्हाई अभी क्यों नहीं कर सकते। डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो स्टूडेंट्स डिबेंचर के पास जाओ, वहां पे जस्ट ब्रैकेट में लिख दो सिक्योर्ड अगेंस्ट लैंड एंड बिल्डिंग एंड नो सेकेंड इफेक्ट। इसका कोई सेकेंड इफेक्ट एक लाइन और रखना चाहिए था, चलो क्योंकि प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है स्टूडेंट्स, अगर खुला खुला हो ना तो ठीक रहता है, और एकदम ये गड़बड़ हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, सो आई मिस दैट वन लाइन, ठीक है जाने दो। नेक्स्ट क्या है, डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज। ओके, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,80,000। सो बिलो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग उसके नीचे लिखेंगे मार्केट वैल्यू रुपीज कितना कहा मैंने, 180। एंड नो सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट के बारे में मत सोचो, जाने दो उसको। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज ड्यू फॉर 6 months बट नॉट रिसीव। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये रहा आपका इन्वेस्टमेंट, इसका देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। सो 1,50,000 इंटू 10%, ड्यू फॉर हाउ मेनी मंथ, 6 months। सो 6 by 12, सो 7,500। ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, तो पहला इफेक्ट अदर इनकम में ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था ना, वहां पे ऐड करेंगे, प्लस रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग 7,500 अभी मैंने कैलकुलेट किया। सो आउटर कॉलम ये इंटरेस्ट हो जाएगा 15,000, 7,500 प्लस 7,500 15,000, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड इफेक्ट स्टूडेंट्स अदर करंट एसेट में जाएगा, ये अदर करंट एसेट। अदर करंट एसेट हमने बनाया था क्या,
अदर नॉन करंट एसेट तो है, अदर करंट एसेट नहीं है. तो स्टूडेंट्स व्हाट आई एम डूइंग, लुक हियर स्टूडेंट्स, डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता हूँ, डायरेक्टली बैलेंस में अदर करंट एसेट है ना यहाँ पे, उसके अगेंस्ट में आई विल राइट 7,500. ये क्या है आपके रेफरेंस के लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. हमने उसका नोट नहीं बनाया तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख लिया. इफ जस्ट वन आइटम है तो वी कैन रिकॉर्ड इट डायरेक्टली टू बैलेंस शीट, और कोई अदर करंट एसेट तो नहीं था स्टूडेंट्स. ठीक है, एक्चुअली मुझे ध्यान रखना चाहिए एडजस्टमेंट में है तो बेटर इफ वी ड्रॉ, अच्छा लगता है फाइनल अकाउंट्स में इफ वी ड्रॉ शेड्यूल्स या नोट स्टूडेंट्स. अगर हम मिस कर गए किसी वजह से तो वी कैन रिकॉर्ड डायरेक्टली इन बैलेंस शीट. नेक्स्ट देन स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर 6 months इज अक्रूड एंड ड्यू. अगेन डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स ये रहा 8% है, तो 4 लाख का 8% इज 32, बट 6 months बोला उन्होंने, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 16,000. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एन एक्सपेंस, बट स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट आपको पे करना है, सो इट विल बी फाइनेंस कॉस्ट. यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. अमाउंट हाउ मच वी गॉट 16,016. आपके रेफरेंस के लिए कैसे आया, 4 लाख आपका डिबेंचर, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन ना, आपको लोन पे इंटरेस्ट देना है, रिसीव नहीं होगा, ये आपको पे करना है. सो व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी पेड इट शुड गो टू फाइनेंस कॉस्ट. इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है तो अदर इनकम में. सेकेंड इफेक्ट, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया था तो सेकेंड इफेक्ट विल गो टू अदर करंट लाइबिलिटी. यहां पे आएगा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, अक्रूड एंड ड्यू का है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अक्रूड एंड ड्यू, अमाउंट इज 1616. अभी आपके रेफरेंस के लिए मैं ये एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट लिखता हूँ. एक हमने सॉल्व किया, एडजस्टमेंट नंबर क्या था, वो एडजस्टमेंट नंबर आई था, एडजस्टमेंट आई, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. क्या किया हमने, इसको ऐड किया, ऐड अंडर अदर इनकम, वहां पे हमने उसको ऐड किया, फर्स्ट इफेक्ट. सेकेंड इफेक्ट हमने उसको लिखा अदर करंट एसेट. देन एडजस्टमेंट नंबर जे अभी सॉल्व किया मैंने स्टूडेंट्स, उसको क्या किया हमने, फाइनेंस कॉस्ट में लिखा, पहला इफेक्ट है ना. एंड सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी, बिकॉज वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग इनकम करंट एसेट में जाएगा, ये लाइबिलिटी हो जाएगा. लास्ट ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज ₹10 lakh. So students authorized capital यहाँ लगता है, divided into shares of how much 10. So 10 lakh divide by 10 करेंगे तो 1 lakh. 1 lakh equity shares of ₹10 each. Amount column 10 lakh and double underline. ठीक है स्टूडेंट्स. एक प्रोविजन फॉर टैक्स अभी भी बाकी है. एडजस्टमेंट नंबर क्या था स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट नंबर एफ. स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने वो नोट लिखा दिया था आपको. वंस अगेन, पहले कौन से शेड्यूल क्लोज करने चाहिए जो पीएनएल से रिलेटेड है. पीएनएल से रिलेटेड कौन कौन से शेड्यूल हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट करते हैं उससे. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट एक ही अमाउंट है, सो टोटल विल बी 4,10,000. यहाँ 2 अमाउंट है स्टूडेंट्स, 15 एंड 11. सो स्टूडेंट्स ये दोनों का टोटल 26 होगा. यहाँ पे स्पेस नहीं है, बस ध्यान रखना 26 होगा, मैंने एक लाइन कम रखा था 26. एम्प्लॉइज बेनिफिट एक ही है 72,000. ओके. नेक्स्ट देन फाइनेंस कॉस्ट एक ही है 16,000. अभी यहाँ पे बहुत सारे एक्सपेंस है, ध्यान रखना है. 18, 16, 17, 8, 16,500, 75,500. तो ये सब टोटल अभी कहाँ लिखेंगे हम लोग, पीएनएल में लिखेंगे स्टूडेंट्स. सो विल गो टू पीएनएल. स्टार्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने टोटल किया, आंसर आया 4,10,000. ये दिस 410. देन 15 + 11 अदर इनकम था 26,000. सो 410 + 26 करेंगे तो 4,36,000 हो जाएगा टोटल रेवेन्यू. अब आ जाओ एक्सपेंस नंबर 14, एम्प्लॉइज बेनिफिट 72,000. देन 15 is 16,000, number 15. And last number 16, 75,500. ओके. तो हमेशा पहले कौन से शेड्यूल्स क्लोज करने का, नोट्स क्लोज करने का जो पीएनएल से रिलेटेड है. अब ये एक्सपेंस का टोटल 72 + 16 + 61,200 + 75,500. सो 2,24,700.
total income minus total expense, 436 minus 224,700. It comes to 2,11,200. Now students, that provision for tax का adjustment number क्या था? F. Provision for tax is to be made 40% on current year profit. तो मिल गया ना, profit before tax, current year profit. इसी को current year, आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ लिख देता हूँ मैं. This is current year profit, obviously, क्योंकि हमने current year की income minus current year expense किया है. So this is your current year profit. इसका 40% tax का है स्टूडेंट्स. तो उसका वर्किंग मैं यहाँ कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है. That is adjustment number क्या था? Adjustment number it was कहाँ गया? F. Adjustment F था. Provision for tax, 40% of current year profit. So 40% of 2,11,300. So 2,11,300 into 40%. It comes to 84520. इसका दो इफेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ. एक इफेक्ट P&L स्टेटमेंट में जाएगा एंड दूसरा इफेक्ट देखते हैं, वो एडवांस टैक्स से कंपेयर करना पड़ेगा. पहले P&L का मैं इफेक्ट लिख देता हूँ स्टूडेंट. 84520 वी गॉट. So see, provision for tax for the current year 84520. Okay. अभी स्टूडेंट देखो, करंट ईयर का एडवांस टैक्स दिया था डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, लास्ट आइटम मैंने वो लिखा नहीं था, अगर आपको याद हो तो. एडवांस टैक्स 60,000 था. पास्ट ईयर का लिखा था. देखो पास्ट ईयर का ऐसे लिखा था मैंने. लुक हियर, पास्ट ईयर का एडवांस टैक्स, पास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स. अभी ये कौन सा साल का? 5-6 मतलब करंट ईयर. एडवांस टैक्स 60,000 है और प्रोविजन फॉर टैक्स 84,520 है. तो कौन सा अमाउंट बढ़ा है? प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ा है. तो कहाँ जाना चाहिए? शॉर्ट टर्म प्रोविजन. हमने कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन अभी बनाया नहीं स्टूडेंट्स, सो नो नीड टू वरी. हम लोग डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएंगे. यहाँ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है ना, तो आपके रेफरेंस के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं. कितना है? प्रोविजन फॉर टैक्स 84,520 minus 60,000. So net answer 84520 minus 60. So it comes to 24,520. Students एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हो. मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ क्यों कर सकते हो. क्योंकि स्टूडेंट्स आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मालूम ही कब पड़ेगा? अनलेस एंड अनटिल यू क्लोज योर P&L, और वो लास्ट में क्लोज करते हो ना, जब भी आपको मालूम पड़ेगा कि एडवांस टैक्स इज बिगर देन प्रोविजन फॉर टैक्स, कि प्रोविजन फॉर टैक्स इज बिगर देन एडवांस टैक्स. इनिशियली किसी को भी नहीं पता चल सकता स्टूडेंट्स आगे सोन में. तो इन एग्जाम अगर ऐसा एडजस्टमेंट है, सो आपने अगर शेड्यूल नहीं बनाया, सो नो नीड टू वरी. आप ऐसा बैलेंस शीट बना रहे हो वहां पे ब्रैकेट में, बट राइट विद पेन वहां पे एग्जाम में, तो कि दिस इज योर प्रोविजन फॉर टैक्स and this is advanced tax, so net answer we recorded to outer column. ठीक है. so P&L का स्टेट, अभी P&L स्टेटमेंट हमने हाँ यहाँ पे लिख दिया. प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्सेस शॉर्ट प्रोविजन कुछ भी नहीं था. so 2,11,300 minus 84,520. so final answer is 126,780. this goes to reserves and surplus. प्रोविजन फॉर टैक्स एक इफेक्ट यहाँ लिखा मैंने. सेकेंड इफेक्ट, एडवांस टैक्स वॉज गिवन इन ट्रायल बैलेंस, लास्ट आइटम. तो प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ा है, तो अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर, एडवांस टैक्स करंट ईयर, माइनस सेट ऑफ करके आउटर कॉलम में लिखा. देन वी क्लोज अवर इनकम स्टेटमेंट. 2,11,000 माइनस दिस वी गॉट 126,780. गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. मैं भी पेंसिल से लिख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए इसके लिए. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर, दैट इज 126, 84 तो प्रोविजन फॉर टैक्स, 126,780, 126,780. अब इसका टोटल कर लेते हैं. 126,780 प्लस 55,000, 181,780. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट शेड्यूल. अभी बैलेंस शीट के शेड्यूल क्लोज करेंगे. पहला शेयर कैपिटल है, ये तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं. 5 लाख. रिजर्व्स 15 plus 20 plus 1,80,000, 181,780. 3,96,780 ये रिजर्व्स हो गया. यहाँ पे एक ही आइटम है 4 लाख. यहाँ पे दो है 90 and 40, 130. ये ओनली वन आइटम. नंबर 5 में 16,000. मैं जस्ट अब टोटल कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप अपने कैन कैरी ऑन, आप खुद भी कर सकते हो. 1,50,000. Here there is only one item, so 2,000. Schedule note number 8. Number 9, 94,000 total. Number 10, 145 plus 30 will be 175,000. 11 cash, only 8,000.
12 वो ऑलरेडी हो चुका है, 12 से 16 ऑलरेडी हो चुका है स्टूडेंट। हाँ फिक्स एसेट बचा ना, हाँ अभी फिक्स एसेट कैसे फिल करते हैं स्टूडेंट्स, एडिशन रिडक्शन दिया ही नहीं है। सो फॉर 4 लाख प्लस 0 माइनस 0, सो क्लोजिंग विल ऑल्सो बी 4 लाख। चलो ये पेन से लिख देता हूँ, ये 4 लाख क्लोजिंग हो गया। 5 लाख प्लस 20 माइनस 0, सो 5 लाख 20। 1 लाख प्लस 0 माइनस 30, 70,000। ओके, ओपनिंग 4,000 प्लस 9,000 माइनस 0, 4 प्लस 9 इज 13,000। 1 लाख 30 प्लस 39 माइनस 0, 169। डिडक्शन मतलब माइनस करने का ना। 10 प्लस 13 200, सो 23,200 माइनस 6,000, तो 17,200 हो जाएगा ना। ओपनिंग नेट ब्लॉक चाहिए, ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन, 4 लाख माइनस 40, 3 लाख 60। 5 लाख माइनस 1 लाख 30, 3 लाख 9, सॉरी इट्स नॉट 3 लाख, 5 लाख माइनस 1 लाख 30, 370 होगा स्टूडेंट, सॉरी 370 होगा। 1 लाख माइनस 10, सो 90,000, ये हो गया ओपनिंग। क्लोजिंग मतलब क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, 4 लाख, दिस इज 4 लाख ना, 4 लाख माइनस 13, सो 387। 5 lakh 20 minus 169. Closing cost is 5 lakh 20 minus 169. So it is 351, 351. Closing cost 70 minus 17,200. 70 minus 17,200. It comes to 52,800. ये लास्ट कॉलम का टोटल करने का ये बैलेंस शीट में जाता है। 52,800 प्लस 351 प्लस 387,000. So it is 790,800. So this will go to where students, ये जाएगा बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट में आपका फिक्स्ड एसेट है ना, नंबर 6, 790,800। अब कॉपी कर लेते हैं नंबर 1 ऑनवर्ड्स। नंबर 1 5 लाख है, नंबर 2 is 396,780, 396,780. So 5 plus 3 is 8. So 896,780. Long term borrowings एक ही था 4 lakh. There was no long term provision. So 4 lakh plus 0, 4 lakh. Number 4 क्या था students? 1 lakh 30, 130. Number 5 क्या था? 1616. ये सबका टोटल। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स तो नहीं था। 130 plus 16,000 plus 24,520, 170,520 plus 4 lakh plus 896,780. So it is 146,730. Okay, अब आ जाओ एसेट साइड। ये हमने कहाँ तक कॉपी कर लिया? 5 तक। नंबर 6 क्या था? नहीं 5 हो गया। नंबर 6 तो फिक्स एसेट डन। Number 7 non-current investment 1,50,000 non-current investment. Then क्या है students? Other non-current asset 2,000. इसका total outer column. There was no long-term loans advances. Number 9 था inventories. This current investment नहीं है. Inventories 94,000. Trade receivable number 10 1,75,000. Number 11 8,000. Number 11 8,000. Short term loans advances नहीं। Okay. 790,800 plus 2,60,000 plus 1,50,000 plus 2,000. It is 1,202,800. 94 plus 175 plus 8 plus 7,500. This total is 2,84,500 plus 1,202,800, 1,487,300. 20,000 का डिफरेंस आ रहा है। क्या डिफरेंस आ रहा है यार? एक मिनट सुनिए सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने? $351 बराबर 10 minus 1 lakh minus 30.
स्टूडेंट्स वो मिस्टेक मैंने क्या किया था स्टूडेंट्स, लुक हियर, मैंने एक जीरो, ओके एवरीथिंग इज करेक्ट स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक किया, देखो मिस्टेक क्या है, पेंसिल से लिखो तो अच्छा रहता है, बट आई हैव डन ऑलरेडी, दिस वाज 40,000 ना, तो 40 प्लस 9 शुड बी 49, मैंने क्या कर दिया इसको 4,000 प्लस 9,000 फॉर, सब कैलकुलेशन ठीक था, बट वो एडिशन में मैंने आई कंसिडर दिस 4 प्लस 9 13 लिख दिया, ओपनिंग प्लस एडिशन माइनस 0, तो 40,000 प्लस 9,000, सो दिस शुड बी 49 स्टूडेंट्स, ये मिस्टेक था मेरा। सो अभी ये चेंज हो गया, तो डेफिनेटली अभी देखो क्लोजिंग कॉस्ट 4 लाख माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन 49, नेक्स्ट टाइम से उसको भी पेंसिल से ही लिखूंगा, 351 आएगा स्टूडेंट, दिस विल बी 351, टोटलिंग एरर था, एडजस्टमेंट्स हमने सब सही किए हैं, टोटल में मैंने गड़बड़ किया, सो इफ दिस बिकम्स 351 तो डेफिनेटली ये नीचे फिक्स एसेट चेंज होगा, 351 52 800, इट कम्स टू 754 800 स्टूडेंट्स फिक्स्ड एसेट। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ फिक्स एसेट चेंज करना पड़ेगा, आप लोग तो शायद पहली व्हेन आई एम डूइंग टोटल जब भी आपको क्लिक हो जाता होगा कि सर ये रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है 754 800, मुझे मगर कोई बताने वाला नहीं होता है ना स्टूडेंट्स कि ये गड़बड़ हो रही है, ओके सो 754 800, सो एक्चुअली मैंने ये टोटल में गड़बड़ किया था, 40 प्लस 9 49 लिखना था, मैंने 4 प्लस 9 13,000 लिख दिया था, ओके एंड स्टूडेंट्स अनदर मिस्टेक देखो मैंने क्या किया, एक ट्रायल बैलेंस का आइटम ही मैंने जल्दी जल्दी में रिकॉर्ड नहीं किया, वो अगेन अगर क्लास में होता ना तो स्टूडेंट्स तो कोई ना कोई तो पॉइंट आउट करता ही, सी ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर सेकंड लास्ट आइटम, वो मैंने कहीं लिखा ही नहीं, ये है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बट दिस वाज एज पर एडजस्टमेंट स्टूडेंट, देखो वो एडजस्टमेंट कहाँ गया, ये एडजस्टमेंट जे की वजह से आया कि 6 मंथ्स का डिबेंचर का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, ओके बट ट्रायल बैलेंस वाला इंटरेस्ट तो मैं लिखना ही भूल गया स्टूडेंट्स, इट वाज माय मिस्टेक स्टूडेंट्स, तो वो मैं लिख देता हूँ, ट्रायल बैलेंस में हमने उसको पढ़ा बट मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गया स्टूडेंट्स, सो अभी उससे देखो चेंजेस क्या क्या होगा, आप खाली यहाँ देखो स्टूडेंट्स, सो आई फॉरगॉट दिस, पहले मैं वो लिख लूँ, अभी 2 बार ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्या करेंगे हम, चलो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वो आउटस्टैंडिंग था और ये ऐसा 16, तो टोटल कितना हो जाएगा ये अभी 32 स्टूडेंट्स है ना, तो लुक क्या स्टूडेंट्स अभी चेंजेस क्या क्या होगा बिकॉज ऑफ दिस, ये मिस्टेक की वजह, ये तो टोटल एरर था, ये ट्रायल बैलेंस में दिया था, मैं लिखना ही भूल गया स्टूडेंट्स इसको, ये क्या है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट नंबर जे के इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, ये उसके लिए लिखा, दिस वाज गिवन इन ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड सेकंड लास्ट आइटम, ये मैं लिखना ही भूल गया, ओके सो नाउ आई रिकॉर्डेड 32 आ गया, तो देखो पीएनएल का आपका ये चेंज होगा, यहाँ देखो स्टूडेंट्स अभी आप इसके लिए आप भी अगर सॉल्व करते होंगे ना स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ मी साइमल्टेनियसली, तो आप भी पेंसिल से लिखा करो, मुझसे मिस्टेक हो सकती है ऑब्वियसली, सो ये 32 है, इट इज नॉट 16, अभी ये 32 हो गया, सो ऑब्वियसली ये चेंज होगा, 72,000 प्लस 32 प्लस 61,200 प्लस 75,500, so it becomes 2,40,700, 240, so 436 minus 240,700, so it comes to 195,300, इसका 40% टैक्स into 40%, it comes to 78,120, तो पीएनएल में देखो खाली एक गड़बड़ की वजह से कितना चेंज करना पड़ रहा है, फाइनल अकाउंट्स का स्टूडेंट्स डिफिकल्ट नहीं होता है, नो डाउट अबाउट दैट, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी बात ठीक है, ऐसे तो नहीं कहना चाहिए स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट नहीं होता है, बट लेंदी क्वेश्चन होता है ना स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस में कोई आइटम मिस हो जाता है, कहीं टोटल में एरर हो जाती है, उसकी वजह से ऐसा लगता है टैली क्यों नहीं हो रहा, सो हियर आई मेड अ मिस्टेक, एक मिस्टेक ये किया टोटल एरर, और दूसरा एक आइटम ही लिखना मैं भूल गया था, इसके लिए डिफरेंस आ रहा था, ओके सो 78,120 आई गॉट प्रोविजन फॉर टैक्स, तो डेफिनेटली फाइनल प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, 195,300 माइनस 78,120, so final answer is 11,11,7180, okay this goes to reserves, तो reserves में P&L मैंने लिखा था, वहां तो मैंने पेंसिल से ही लिखा, तो अच्छा है टोटल चेंज भी करना पड़े तो मैं एडवाइज आप भी तो पहले स्टूडेंट्स टोटल पेंसिल से ही लिखा करो, 11,7180 नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर प्लस 55,000 प्लस 55 172,180, okay plus 15
plus 20 plus 1,80,000. So 387,180. So balance sheet में ये 396 था ना, so it becomes 387,180. 387,180. और प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा ये 84 नहीं था, ये चेंज हो गया था 76 समथिंग. देखो एक मिस्टेक होने से कहाँ स्टूडेंट्स एक आइटम ट्रायल बैलेंस का भूल गया. आई विल डिस्कस, वापस से पूरा बताऊंगा क्या क्या चेंज किया मैंने, नो नीड टू वरी. अभी प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने कैलकुलेट कितना किया, 78,120. सो 78,120 माइनस 60, 78,120 माइनस 60, 18,120. सो डेफिनेटली ये टोटल भी चेंज हो जाएगा. ₹5,00,000 plus 387, so 887,180. 1,30,000 plus 16 plus 18,120. So this will be 1,64,120 plus 4,00,000 plus 887,180. 14,51,300. अभी एसेट का टोटल 754,800 प्लस 2,60,000 है प्लस 1,50,000 है and plus 2,000. So this is 11,66,800 plus 284,500. So 14 lakh अभी टैली हो गया, 14,51,300. 14,51,300. I will explain स्टूडेंट. देखो एक मिस्टेक की वजह से what I did, मुझसे क्या गलती हुई, ट्रायल बैलेंस में दिस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज गिवन, सो मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, तो अभी मैंने इसको रिकॉर्ड किया. एंड फिक्स एसेट में 40 प्लस 9 शुड बी रिकॉर्डेड एज 49. मैंने इसको 4,000 प्लस 9,000 करके 13,000. इसकी वजह से बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही थी. एडजस्टमेंट्स हमने सब सही सॉल्व किया, एडजस्टमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है. एक ये मैं आइटम मिस कर गया था, यहाँ पे टोटल में मैंने एरर किया, तो इसकी वजह से फिक्स एसेट चेंज हुआ, तो मैंने फिक्स एसेट चेंज करके यहाँ पे लिखा. हाँ, ये चेंज होने की वजह से स्टूडेंट्स ये पीएनएल से रिलेटेड है ना, तो पीएनएल का ये पीएनएल में लिखा मैंने यहाँ पे चेंज करके 32. तो ऑब्वियसली जब ये 32 हो गया तो टोटल चेंज होगा. ये टोटल चेंज हुआ तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज होगा. प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज हुआ तो आपका प्रोविजन फॉर टैक्स चेंज होगा. व्हाई? बिकॉज प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे आता है, दे हैव सेड ऑन करंट ईयर प्रॉफिट. सो 1,95,300 इंटू 40% उन्होंने कहा था, ये यहाँ लिखा. ये चेंज हुआ तो इसके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये अमाउंट चेंज हो गया. फॉलोड एक 16,000 मिस करने की वजह से कितने चेंजेस आ गए. सो फाइनली 14,51,300 इज द टोटल ऑफ बैलेंस शीट. दिस इज आवर बैलेंस शीट. ये P&L प्रॉफिट एंड लॉस. अच्छा, यहाँ पे भी मैंने क्या किया था, ये 84 लिया ना, 40% ऑफ 195,300. 195 ये 195,300 इंटू 40%. क्यों पहले प्रॉफिट हमको अलग आया था मेरी मिस्टेक की वजह से. 40% फाइन करेंगे तो कितना आएगा, 78,120. और उसका मैंने दो इफेक्ट लिखा था. एक इफेक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, दूसरा इफेक्ट गया शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में. सो आई मिस्ड वन डिबेंचर इंटरेस्ट जो ट्रायल बैलेंस में था, उसकी वजह से इतने चेंज करने पड़े. सो दिस इज अवर इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. ये हमारा बैलेंस शीट हो गया. ये फिक्स एसेट शेड्यूल 15, 16. ये वर्किंग नोट स्टूडेंट्स, या एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट्स है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया. एडजस्टमेंट डी जो सिंपल इफेक्ट्स है जिसका वो नहीं लिखा है, जो थोड़ा डिफिकल्ट है वो मैंने सब कैलकुलेट करके आपको बता दिया. एंड बाकी रेस्ट वर्किंग नोट्स यहाँ पे. ओके, starting with October 2006 students. October 2006 solve कर रहे हैं. Mr. Confusion is the accountant of Ultimate Confusion Limited. He presents you the following trial balance as on 31st March 2005. Cash in hand on 31st March 2005 is 750. अच्छा, cash in hand trial balance के बाहर दिया है. Now, क्वेश्चन के नाम से Mr. Confused, just like us,
अकाउंट्स की समझ नहीं है, जैसा हम लोग ने स्टूडेंट्स होके गलती हो जाती है, तो दैट पर्सन व्हाट ही हैज डन, उसने ट्रायल बैलेंस तो बनाया है, बट आप ट्रायल बैलेंस में नोटिस करना, देखो क्या गड़बड़ किया उसने, व्हाट मिस्टेक्स ही हैज मेड. बैंक बैलेंस 72,900, कॉल्स इन एरिया 7,500, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख. अच्छा, बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कॉल्स इन एरियर्स विल सबट्रैक्ट फ्रॉम शेयर कैपिटल. लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट. क्रेडिट साइड पे तो पहले डेबिट पूरा पढ़ लो, नेक्स्ट पेज पे मशीनरी फिक्स्ड एसेट. इंटरिम डिविडेंड पेड माइनस फ्रॉम पीएनएल. रिजर्व्स में जब हम पीएनएल लिखेंगे ना, वहां पे सबट्रैक्ट करेंगे. स्टॉक ऑन 1st April, क्लियरली 1st April लिखा है, दैट मींस दैट इज ओपनिंग स्टॉक. ठीक है. नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल, फर्नीचर फिक्स्ड एसेट. परचेजेस अभी यहाँ पे मटेरियल कंज्यूम, सो विल राइट परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड. ये परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में लिख देंगे हम. नेक्स्ट देन व्हाट दे हैव गिवन, इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सैलरीज एंड वेजेस, एम्प्लॉइज बेनिफिट, फ्यूल other expense, rent rates, taxes, other expense, discount allowed, other expense, director fees, employees benefit, bad debts, other expense, debenture interest, finance cost, sundry expense, other expense, deposit from public. It should go to, अच्छा deposit from public ना लिया है, but recorded on debit side. तो देखो इसने mistake किया है ना, सुन. This will go to long term borrowings. अच्छा, ऊपर बोला था फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस. सो ट्रायल बैलेंस में एरर है. देखो एक एरर तो क्या है, ये डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, मतलब कंपनी ने पैसा डिपॉजिट लिया है, तो कंपनी हैज टेकन अ लोन. अगर आप लोन लेते हो ना स्टूडेंट्स, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे होना चाहिए. उसने डेबिट पे लिखा है, बट हमको वी हैव टू बी केयरफुल, इट इज लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. सो डेबिट समझ के उसको एसेट पे मत लिख देना. एंड प्लीज नोटिस, उन्होंने कहा तो था कि फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, बट देखो ट्रायल बैलेंस के पर्टिकुलर्स कॉलम में ना कहीं भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा है स्टूडेंट. सो वी मस्ट बी केयरफुल. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में. सो दिस विल गो टू वेयर, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लॉन्ग टर्म बोरिंग. क्रेडिट साइड सब्सक्राइब कैपिटल, शेयर कैपिटल में जाएगा. डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लस. सन्ड्री डेटर्स, अभी अगर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से तो क्रेडिट साइड पे रॉन्ग है ना, ये तो एसेट है ना, डेबिट में होना चाहिए. सो डेटर्स वेयर इट विल गो टू स्टूडेंट्स, बिल्स अपना ट्रेड रिसीवेबल्स. सेल्स, इट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अच्छा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी लिखा है और क्रेडिट साइड पे भी दिया है. सो अगेन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहां पे जाएगा स्टूडेंट्स, ये दिस विल गो टू अदर, अच्छा अदर नॉन करंट एसेट. सिंकिंग फंड इज अ रिजर्व्स. आफ्टर लोकेटिंग द मिस्टेक्स, तो हमने मिस्टेक्स कुछ तो देखा है कि हाँ कुछ मिस्टेक्स है. वो डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एक गड़बड़ है. फिर देखो बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स, वो सब दिया था ना ऊपर डेबिट साइड पे, है ना. तो ये उसने मिस्टेक्स किया है स्टूडेंट्स. उसका नाम ही ऐसा था ना, मिस्टर कंफ्यूज. तो उसको जैसा समझ में आया उसने वो सारे आइटम्स बस लिख दिए. कुछ डेबिट में लिख दिया, कुछ क्रेडिट में लिख दिया. बट वी हैव टू बी केयरफुल. क्रेडिटर्स अगर डेबिट में दिया तो दैट डजंट मीन्स वो एसेट हो गया. आगे समझ में. सो आफ्टर लोकेटिंग द मिस्टेक्स, मेकिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मेरे पास ओल्ड बुक है, तो पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस कहा जाता था, अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बैलेंस शीट होता है स्टूडेंट्स. For the year ended 31st March 2005 and balance sheet is on that date in vertical form. Ignore previous year's figures. Authorized capital of the company 60,000 equity shares of 10 each. Calls in arrears are at the rate of 5 per share. Stock on 31st March. Stock on 31st March मतलब closing stock 137,120. Write off 1/5 of preliminary expenses. Details of fixed asset are is under. Building, machinery, furniture. Original cost दिया है, उसका depreciation दिया है और rate of depreciation. Depreciation during the year is to be charged on WDV as at the beginning of the year. There were no addition or deduction during the year. No addition deduction मतलब ना कोई asset खरीदा ना कोई asset बेचा. Rectified trial balance is not required. जब हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था ना उसने कुछ मिस्टेक किया है. बट व्हाट दे आर सेइंग, आप रेक्टिफाइड ट्रायल बैलेंस मत बनाओ, डायरेक्टली पोस्टिंग से स्टार्ट करो स्टूडेंट. दैट इज अ सिंपल मीनिंग. तो हमको पोस्टिंग से डायरेक्टली स्टार्ट करना पड़ेगा. ओके, सो पोस्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स लेट मी, अगर आप डिसाइड कर सकते हो कितने नोट्स बनाने तो मुझसे पहले आप लोग लिख लो बैलेंस शीट में कौन कौन सा नोट बनेगा. मैं जब तक पीएनएल अपना ही रब करके रेडी कर लेता हूँ.
even though there are mistakes in trial balance, they are clearly saying that कि please don't draw a rectified trial balance. उसी trial balance से आप अपना postings करो और final accounts complete करो. That is the simple meaning. ठीक है, तो start करते हैं students. ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग. पहला बैलेंस शीट. शेयर कैपिटल था, डेफिनेटली यस था. रिजर्व एंड सरप्लस भी है. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स भी था स्टूडेंट्स. डिबेंचर्स दिया था ना आपको मैंने. देन और क्या था स्टूडेंट्स? लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं था. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी नहीं है. ट्रेड पेबल है ना, क्रेडिटर्स. अदर करंट लायबिलिटी क्या था स्टूडेंट्स? कोई अदर करंट लायबिलिटी? आई डोंट थिंक सो. और एडजस्ट में भी नहीं है स्टूडेंट्स. देयर इज नो अदर करंट लायबिलिटी. चलो ठीक है. शॉर्ट टर्म प्रोविजन था. कोई प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस टैक्स, ऐसा कुछ था क्या स्टूडेंट्स? नहीं, आई डोंट थिंक सो. नहीं, एडवांस टैक्स प्रोविजन को टैक्स दोनों कैलकुलेट भी करने नहीं कहा. ठीक है, जाने तो. नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट है नंबर 4. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स. इन्वेस्टमेंट परचेज. हाँ, इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स. इन्वेस्टमेंट था. सो दैट बिकम्स नंबर 5. नो लॉन्ग टर्म नोट्स एडवांसेस. अदर नॉन करंट एसेट है 6. नो करंट इन्वेस्टमेंट. इन्वेंट्री है 7. ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स था ना, डेटर्स था स्टूडेंट्स. वो क्रेडिट साइड पे दिया तुमने. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, या वो टॉप पे दिया था कैश इन हैंड. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं. अदर करंट एसेट, आई डोंट थिंक सो. ठीक है. सो इन ऑल 9 नोट्स फॉर बैलेंस शीट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 10. अदर इनकम था क्या कुछ? नहीं स्टूडेंट्स, अदर इनकम नहीं था. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम नहीं है. परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है स्टूडेंट्स, नंबर 11. चेंजेस इन इन्वेंट्री इज 12. एम्प्लॉइज बेनिफिट था कुछ, सैलरीज वेजेस ऐसा कुछ. हाँ, सैलरीज वेजेस था स्टूडेंट्स, 13. फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड कुछ दिया था हमको. डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, डिबेंचर इंटरेस्ट. यस, डिबेंचर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट पेड होता है. डिबेंचर इज अ लोन ना. अदर एक्सपेंस है कुछ, रेंट, फ्यूल, हाँ दिया है ना हमको. सो दैट बिकम्स 15. सो इन ऑल हमको 15 नोट्स बनाने हैं. 10 इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. Stock in purchase of stock in trade 11, changes in inventories 12, employees benefit 13, finance cost 14, other expenses 15. और ये बैलेंस शीट का नोट्स था स्टूडेंट्स. ठीक है, 1 till 9 इज इन बैलेंस शीट. स्टार्ट करें. Number 1, they have given us authorized. एक ही था ना, इक्विटी है खाली, शायद रेफरेंस तो नहीं. ठीक है. Then issue subscribed paid up. Number 2, कितने रिजर्व्स थे स्टूडेंट्स? रिजर्व्स एंड सरप्लस. एक पीएनएल तो था पक्का, और कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व ऐसा तो कुछ नहीं दिया स्टूडेंट्स. तो मैं 2-3 लाइंस रखता हूँ. नंबर 3 we decided trade payables. company authorized capital of the company 16. sorry, trade payable में bills payable भी, creditors भी ट्रायल बैलेंस में. so 1, number 4 was fixed asset. स्टूडेंट्स मैंने fixed asset ऑलरेडी बना लिया है यहाँ पे. number 4 fixed asset. ओके, क्योंकि उसके कॉलम ज़्यादा होते हैं, मैं पहले ही बना लेता हूँ. number 5 is non current investment.
एक ही इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स और उसका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। एडजस्टमेंट तो एक ऑथराइज है स्टॉक है, बस 2 ही 3 एडजस्टमेंट है। ओके, नंबर 6 हमने अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट एक ही था ये भी, और उसमें एडजस्टमेंट है। नंबर 7 इन्वेंट्रीज एक ही है। नंबर 8 मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। नंबर 8 नेक्स्ट पेज पे ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। और नेक्स्ट क्या है, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, दोनों दिया है। 9 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एक ही था कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग, एक दिया था। बैंक बैलेंस तो शायद नहीं दिया, हाँ बैंक बैलेंस भी दोनों है। ओके, नंबर 10 था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। Number 11 was purchase of stock in trade. Changes in inventories. 1, 2, 3. 13 is employees benefit. Employee benefit expense. लास्ट नहीं, फाइनेंस कॉस्ट 14 है। लास्ट नंबर 15 इज अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस में नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ स्टूडेंट्स, ओवर हियर आई विल ड्रॉ नंबर 15 अदर एक्सपेंसेस। ओके, स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग से। इन ऑल वी हैव 15 नोट्स। अगेन स्टूडेंट्स डिफिकल्ट नहीं होता है, टाइम कंज्यूमिंग है, नो डाउट अबाउट दैट। ये बैलेंस शीट बनाना पूरा एग्जाम में, P&L स्टेटमेंट बनाना, एंड इफ दे आर फिक्स्ड एसेट शेड्यूल आल्सो, तो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। डिफिकल्ट नहीं होता स्टूडेंट्स फाइनल अकाउंट्स। वापस से बिगिनिंग से पढ़ते हैं। मीन मिस्टर कंफ्यूज एन अकाउंटेंट ऑफ अल्टीमेट कंफ्यूजन लिमिटेड। अब उसने क्या क्या गड़बड़ किए देखो। पहले तो कैश इन हैंड उसने ऊपर लिखा है स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया। कैश इन हैंड एंड 31 मार्च 2005 इज 750। तो कैश इन हैंड मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 9 में जाएगा। नोट नंबर 9 कैश इन हैंड, हाउ मच दे हैव सेड 750, so 750। कॉल्स इन एरियर्स शेयर कैपिटल में माइनस होता है, तो हियर आई एम राइटिंग माइनस कॉल्स इन एरियर्स, सॉरी कॉल्स इन एरियर्स कितना दिया उसने हमको 7500। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है स्टूडेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट। अच्छा बट ध्यान से स्टूडेंट्स देखो, बैलेंस शीट ये ट्रायल बैलेंस में हमको कितना दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख। ध्यान से देखो। अच्छा ये मैं लिख दूं पहले, एसेट ग्रॉस ब्लॉक का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट या कॉस्ट ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। नेक्स्ट मेजर कॉलम इज डेप्रिसिएशन, उसमें 4 सब कॉलम है, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। लास्ट वाला नेट ब्लॉक, ओपनिंग, क्लोजिंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट। स्टूडेंट्स लैंड एंड बिल्डिंग का था। अभी ध्यान से स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जस्ट 3 एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन छोटा सा है खाली। देखो लैंड एंड बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में 3 लाख, बट एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो 4 सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग ओरिजिनल कॉस्ट इज 3,50,000। तो उन्होंने डिटेल दिया है ना ओरिजिनल कॉस्ट का, तो वी हैव टू राइट इट स्टूडेंट्स, फिर उसको इग्नोर नहीं कर सकते। फॉलो, तो मैं ये कहां से लिया, मैंने वहां से लिया, या लेटर ऑल्सो आई कैन रिकॉर्ड व्हेन आई सॉल्व द एडजस्टमेंट, या तो फर्क समझ लो। ठीक है, मैं अभी आपको खाली फर्क। ट्रायल बैलेंस में दे हैव गिवन अस 3 लाख स्टूडेंट्स,
और ओरिजिनल कॉस्ट वो लोग बता रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का 3,50,000. सो दैट मीन्स वो 3 लाख जो ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है, इट इज नथिंग बट ओपनिंग WDV, वो ओपनिंग नेट ब्लॉक है. ठीक है. अगर ट्रायल बैलेंस में स्टूडेंट दे हैव गिवन सर्टेन अमाउंट फॉर एनी एसेट, फिक्स्ड एसेट की बात कर रहा हूं, फिक्स्ड एसेट, एंड कॉस्ट इज गिवन एज इन एडजस्टमेंट, सो ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट होगा ना दैट विल बिकम रिटर्न डाउन वैल्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉस्ट आपको 350 दिया है और ट्रायल बैलेंस में अमाउंट 3 लाख है. सो दैट मीन्स आपका ओपनिंग नेट ब्लॉक दिया है आपको ट्रायल बैलेंस में, कॉस्ट नहीं दिया है, कॉस्ट आपको एडजस्टमेंट में दिया है. सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. सेम वे मशीन लैंड एंड बिल्डिंग के बाद मशीनरी है स्टूडेंट्स. देखो ट्रायल बैलेंस में कितना है, वो 297, बट उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना दिया है नीचे एडजस्टमेंट में 4 लाख. तो ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख है, तो व्हाट इज दिस 297? सो 297 इज नथिंग बट आपका WDV है स्टूडेंट्स. इट्स नॉट एन अजम्पशन स्टूडेंट्स, वो कंपेयर कर से मालूम पड़ जाता है ना कि कॉस्ट आपको अलग से दिया है. सो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट है फिक्स एसेट का, इट इज डेफिनेटली स्टूडेंट्स व्हाट, इट इज रिटर्न डाउन वैल्यू. इंटरिम डिविडेंड पेड हम लोग क्या करते हैं, PNL से माइनस करते हैं. तो जब मैं यहाँ PNL लिखूंगा ना, फिर नेट प्रॉफिट फिर एक लाइन कम पड़ गई. ठीक है स्टूडेंट्स, चलो माइनस इंटरिम डिविडेंड पेड. हाउ मच इंटरिम डिविडेंड 37,500 इनर कॉलम. PNL से ये माइनस होगा. स्टॉक ऑन 1 अप्रैल, ट्रायल बैलेंस 31 मार्च 2005 का है. सो स्टॉक ऑन 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग स्टॉक. सो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में आएगा. ओपनिंग स्टॉक 75,000. नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स. अभी गड़बड़ मत करना, ठीक है, वो डेबिट साइड पे दिया है बट उसका नाम कंफ्यूज अकाउंटेंट है स्टूडेंट्स, हो उसको नहीं समझ में आ रही है कि क्या करना है. बट क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, डोंट मेक इट एसेट. सो क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल्स में आएगा स्टूडेंट्स, ऑल्दो इट इज गिवन ऑन डेबिट साइड. सो बी केयरफुल. क्रेडिटर्स कितना है 40,000. नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं. सो ये क्वेश्चन में हमको ये चीज ध्यान देनी है, अदरवाइज क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट, जस्ट 3-4 एडजस्टमेंट है. वो ट्रायल बैलेंस ही उसने गलत बनाया, बट दे हैव सेड कि डोंट रेक्टिफाई द ट्रायल बैलेंस. आपको उसी ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट्स करना है, तो आपको बट ध्यान से करना पड़ेगा. ठीक है, वो डेबिट में दिया, उसने गलती की है. नेक्स्ट इज फर्नीचर. देखो फर्नीचर कितना दिया है 7,200, बट उसका ओरिजिनल कॉस्ट देखो एडजस्टमेंट नंबर 4 में स्टूडेंट्स, ओरिजिनल कॉस्ट तो 10,000 है ना. तो दैट मीन्स 7,200 क्या होगा, वो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा डेफिनेटली स्टूडेंट्स. ठीक है. फर्नीचर के बाद क्या, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड. अब वो परचेज ऑफ मटेरियल्स तो नहीं लिखा है ना उन्होंने, अगर परचेज ऑफ मटेरियल्स लिखा होगा तो इट विल गो टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्टूडेंट्स. ठीक है, जस्ट परचेज है तो दैट मीन्स इट इज परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड 1,85,000. प्रोविजन फॉर बैड डेट, इसका थोड़ा सा मुझे डाउट होता है स्टूडेंट्स, ये अगर ओल्ड RDD है तो इसको क्रेडिट साइड में होना चाहिए, और अगर ये यही साल किया है तो ये अदर एक्सपेंस में. अभी मैं इसको अदर एक्सपेंस में लिख रहा हूँ और मैं लिखता हूँ पेंसिल से स्टूडेंट्स, बेटर वो अच्छा रहेगा. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि उसने ट्रायल बैलेंस ही गलत बनाया है ना, तो वहां मेंशन नहीं किया इट इज ओल्ड RDD के करंट ईयर का प्रोविजन है. मैं ऐसा समझ के चल रहा हूँ इट इज करंट ईयर प्रोविजन 4375 अदर एक्सपेंस में. अगर ओल्ड RDD है तो भी अदर एक्सपेंस में ही आएगा स्टूडेंट्स, बट वो नेगेटिव साइन से आएगा. ओके. नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट 75,000. इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई डिटेल्स उन्होंने नहीं दिया स्टूडेंट्स के क्या है वो. सो जस्ट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट नंबर 5 वहां पे लिख देंगे. इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया है 75,000. अगेन आउटर कॉलम बिकॉज कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट इज अ सिंपल रीजन. Salaries and wages 1,03,600. Employees benefit, salaries and wages, no adjustment, so outer column 103,600. Fuel, rent rate, discount, ये सब कहाँ जाएगा, अदर एक्सपेंस में. फ्यूल हाउ मच इट इज, एक मिनट में स्केल करके देखूँ. Fuel 13,200, 13,200. Next is rent, rates and taxes. Rent, rates and taxes 3,800. Rent, rates, taxes. Next discount allowed, again other expense में ही आएगा ये. 6,400.
डायरेक्टर फीस मैं इसको एम्प्लॉय बेनिफिट में लिख रहा हूं. एक्चुअली दे हैव नॉट स्पेसिफाइड होल टाइम डायरेक्टर है कि विजिटिंग डायरेक्टर है, कैसा मेंशन नहीं किया है. चलो 5700. बैड डेट्स अदर एक्सपेंस. तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ऐड होना चाहिए. तो स्टूडेंट्स व्हाट आई डू, ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स नीचे ही लिखता हूँ. सॉरी पेंसिल से ही लिखूँ तो अच्छा है. सॉरी स्टूडेंट्स, आई एम रियली सॉरी. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्योंकि वहाँ लिखा नहीं ओल्ड है कि न्यू है. 4375 था और फिर क्या दिया है, बैड डेट्स 2200. ये मैं पेन से लिख सकता हूँ. बैड डेट्स तो पक्का करंट ईयर का ही होगा. बैड डेट्स हाउ मच इट इज गिवन, बैड डेट्स इज 2100. अगर ये ओल्ड आरडीडी है तो दिस विल बी नेगेटिव, और न्यू आरडीडी है तो फिर 4375 ही रहेगा. डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में आएगा स्टूडेंट्स. डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट कहाँ था, हमने बनाया फाइनेंस कॉस्ट. हाँ ये रहा डिबेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट. इसका एक हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. डिबेंचर इंटरेस्ट हाउ मच इट इज गिवन, 9000 ना, इनर कॉलम. उसका हिडन एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. विल डिस्कस दैट लेटर ऑन. डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंस में आएगा. sundry expenses 2350. deposit from public long term borrowings नहीं बनाया मैंने. चलो कोई बात नहीं बनाया था. नंबर 3 कहाँ गए, ओहो यहाँ भी नंबर 3 लिख दिया, यहाँ भी नंबर 3 लिख दिया, गलती हो गई. ट्रेड पेएबल्स, चलो ठीक है कोई बात नहीं. मैं यहाँ स्टूडेंट्स इसको जाने देते हैं. यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ अभी, डिपॉजिट अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक हाउ मच इट इज गिवन, 10,000. पक्का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है. मैं यहाँ नंबर 3 लिखा बट तो नोट बनाना भूल गया स्टूडेंट्स, और नंबर 3 भी ट्रेड पेबल को डाल दिया. 3 2 बार लिख दिया. ओके सो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 10,000 आउटर कॉलम. एक ही आइटम है, डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख दिया. ठीक है. नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्रेडिट साइड. 60 पे क्रेडिट साइड. सब्सक्राइब कैपिटल 4 लाख और शेयर, ये कैपिटल का फेस वैल्यू कितना है, एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है 10 ईच. तो 4 लाख को डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 40,000 आएगा. सो हियर विल राइट 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10. 4 लाख में 7,500 माइनस कर दो. सो 3,92,500. कॉल्स एंड एरियाज माइनस होता है, फोरफिट शेयर्स फोरफिट होता है तो ऐड होता है स्टूडेंट्स को, फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट. ठीक है. नेक्स्ट 6% डिबेंचर्स. मैंने पेन से रेड पेन से लिख दिया, सॉरी दिस वाज नॉट इन एडजस्टमेंट, ये तो ट्रायल बैलेंस था. ब्लैक पेन से ही लिखना चाहिए था स्टूडेंट्स. मैं थोड़ा ऐसे लिख दूँ. पोस्टिंग्स में ब्लैक पेन से कर रहा हूँ ये क्वेश्चन में. सो दिस इज पोस्टिंग नॉट एन एडजस्टमेंट. वही चीज मैंने अभी ब्लैक पेन से कर दी. ओके. नेक्स्ट 6% डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. मैंने बनाया ही नहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स. कितनी बड़ी गलती किया स्टूडेंट्स. अब क्या करेंगे, सो व्हाट वी हैव टू डू, या तो बनाओ बट नंबर चेंज करना पड़ जाएगा. इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द नंबर, ओके लुक हियर स्टूडेंट्स, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक 10,000, कैसे भूल जाता हूँ, प्लस 10,000, सो प्लस 3 लाख. रीड करते टाइम मैंने कहा भी लॉन्ग टर्म बोरिंग, लिखा भी नंबर 3 बट बनाया नहीं. 3 2 बार लिख देना. सो इट बिकम्स 3,10,000 स्टूडेंट्स. ओके. बट माय एडवाइस ना, एग्जाम में अगर एक से ज्यादा आइटम है ना स्टूडेंट्स, प्लीज ड्रॉ द शेड्यूल. अभी तो मैंने बनाया नहीं, अभी सब नंबर काट के नंबर चेंज करूं अच्छा नहीं लगेगा स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ दैट रीजन. ठीक है. तो मैंने क्या किया, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 2 आइटम है, 10,000 डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड 3 लाख इज योर डिबेंचर. सो टोटल मैंने यहाँ पे 3,10,000 लिख दिया. ओके.
बट माई एडवाइस एग्जाम में एक से ज्यादा आइटम है तो बेटर ड्रॉ द शेड्यूल. एक आइटम भी होगा ना तो फाइनल अकाउंट्स में उसका नोट बनाने का स्टूडेंट्स, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना. ओके, सो डिबेंचर्स के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज 13625. सो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे लिखेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस कितना कहा उन्होंने? 13625. 13625, ठीक है. नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री डेटर्स 87,000. ट्रेड रिसीवेबल्स में आएगा स्टूडेंट्स. अच्छा, ऐसा ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स वगैरह तो शायद नहीं था इसके लिए, नहीं ना. ओके, सो डायरेक्टली 87,000 सन्ड्री डेटर्स. नंबर 8 में सन्ड्री डेटर्स 87,000. सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 415,000. Preliminary expenses, other non-current asset, number 6. Preliminary expenses, but inner column students कुछ राइट ऑफ करने उन्होंने बाद में कहा है, 1/5 करके कुछ कहा है उन्होंने कि राइट ऑफ करना है, ठीक है. 5,000. सिंकिंग फंड, रिजर्व्स एंड सरप्लस. अब रिजर्व्स में तो मैंने एक लाइन रखी ही नहीं, तो कहाँ लिखता हूँ उसको स्टूडेंट्स? ये सी रिजर्व्स एंड सरप्लस के बाजू में लिख देता हूँ मैं सिंकिंग फंड. ओके, sinking fund, how much they have given? 75,000. Outer column, it is reserves and surplus students. Against reserves and surplus I have recorded sinking fund 75,000. okay, next क्या है? Adjustments पे. अभी एडजस्टमेंट उसका डिफिकल्ट नहीं है स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है. खाली ट्रायल बैलेंस में हमको ध्यान रखना था, उन्होंने कुछ डेबिट क्रेडिट में गड़बड़ किया था, बट दे हैव सेड डोंट रेक्टिफाई द ट्रायल बैलेंस. उसको रेक्टिफाई नहीं करना है, उसी ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट. Authorized capital of the company is 60,000 equity shares of 10 each. 60,000 equity shares of rupees 10. So 6 lakh हो जाएगा. Double underline, should not be considered when we take totals. Next क्या है? Calls in areas are at the rate of 5 per share. तो students ये 7,500 ना, 7,500 डिवाइड बाई 5, सो 1,500. सो जस्ट बिलो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा 1,500 एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर. इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं. 7,500 टोटल आपको पता है, तो 7,500 पर शेयर. कितना कॉल्स इन एरियाज है? 5. तो इतने नंबर ऑफ शेयर्स आपके पार्टली पेड अप हैं. दैट इज द मीनिंग स्टूडेंट्स. 1,500 शेयर्स पार्टली पेड अप हैं. इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं. एडजस्टमेंट नंबर 2, स्टॉक ऑन 31st March 2005 मींस क्लोजिंग स्टॉक. दो इफेक्ट, एक चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में आएगा. क्लोजिंग स्टॉक हाउ मच? 137,120. 137,120, ठीक है. सेकेंड इफेक्ट इन्वेंट्रीज. 137,120, ठीक है. नाउ फाइनली दैट लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, वो लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह. तो स्टूडेंट देखो ये लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में दिया था, अभी मैं उसको रेड पेन से कर देता हूँ. 3,50,000 कॉस्ट. मशीनरी का कॉस्ट 4 लाख. फिर गलती हो रही थी, 4 लाख है वो. एंड देन फर्नीचर 10,000. फिर डेप्रिसिएशन ऑन 31st March 2004. स्टूडेंट्स हमारा जो ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट हम जो कर रहे हैं ना, वो 31st March 2005 है. सो 31st March 2004, 31st March 2004 मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस. डेप्रिसिएशन टिल 31st March 2004 मींस लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस. सो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस विल बी करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस. सो डेप्रिसिएशन टिल 31st March 2004 मींस करंट ईयर ओपनिंग बैलेंस. ये 50,000 इसका दिया है एंड 1,03,000 इसका दिया है एंड लास्ट वाला 2,800. और स्टूडेंट्स मैंने कहा था ना, जो आपको बैलेंस शीट में वैल्यूज दी है ये सब क्या है? नेट ब्लॉक है, रिटर्न डाउन वैल्यू. आप देखो वेरीफाई भी कर सकते हो. रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है? ओपनिंग का ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन. 3,50,000 माइनस 50 हुआ 3 लाख. 4 लाख माइनस 103 297. 10,000 minus 2,800 7,200. So when cost is given in adjustment, तो ट्रायल बैलेंस का वैल्यू हमेशा WDV होता है स्टूडेंट्स. इसके लिए मैंने उसको ओपनिंग WDV में लिखा था. ओके, देन दे हैव सेड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है तीनों एसेट का 5, 20 एंड 10 एंड दे हैव सेड वी हैव टू फॉलो व्हिच मेथड?
WDV मेथड एज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने किया है ये एडजस्टमेंट. वंस अगेन कुछ नया नहीं है अभी हमारे लिए. दिस इज एडजस्टमेंट नंबर कितना है स्टूडेंट्स? 4 है ना? नहीं, थर्ड तो मैं पढ़ना ही भूल गया. 1/5 ऑफ प्राइमरी एक्सपेंस. चलो ठीक है, पहले 4 कर लेते हैं. अभी वो पढ़ लिया है तो पहले वो ही कर लेते हैं. एडजस्टमेंट नंबर 4, WDV मेथड बोला है. सो स्टूडेंट्स WDV आपको पता है ना, 3 लाख. और वहां लिखा भी देखो, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन व्हाट? डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर टू बी चार्ज ऑन WDV एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर यही है ना, 3 लाख. और नहीं भी कहा होता ना स्टूडेंट्स, WDV मेथड अगर फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग WDV मेथड फॉर डेप्रिसिएशन, इट शुड बी चार्ज ऑन ओपनिंग WDV. प्रीवियस क्वेश्चन में देखो मैंने ओपनिंग WDV पे ही चार्ज किया था. सी लुक किया, 4 लाख minus 40 opening cost minus opening depreciation gives us opening net block. तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ किया था, देखो 3,60,000 और देखो ओपनिंग नेट ब्लॉक पे 3,60,000. सो एक बार WDV मेथड बोला ना, सो यू हैव टू चार्ज इट ऑन ओपनिंग नेट ब्लॉक. तो ओपनिंग नेट ब्लॉक आपको तीनों का पता है. इसका 297 है एंड इसका 7,200. आपको जस्ट परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है. सिंपल सा एडजस्टमेंट है. 5%, 20% एंड 10%. So 3 lakh का 5% will be 15,000 during the year column, addition column of depreciation. Okay, 297 का 20%, 59,400 and 7,200 का 10%, 720. इसका टोटल कहाँ जाता है स्टूडेंट्स? ये P&L में जाता है हमेशा. 15 प्लस 59,400 प्लस 720, 75,120. सो स्टूडेंट्स P&L में जाएंगे. सिंपल सा वर्किंग है. विल गो टू P&L. यहाँ पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन. उसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट ना, against that how much we got? 75,120. ठीक है. सो आई हैव रिकॉर्डेड द टोटल डेप्रिसिएशन. हो गया. सो एडजस्टमेंट नंबर 4. 3 में भूल गया था स्टूडेंट्स. एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो क्या लिखा था. राइट ऑफ 1/5 ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस. सो ये प्राइमरी एक्सपेंसेस अदर नॉन करंट एसेट्स को राइट ऑफ करना है. सो माइनस रिटर्न ऑफ 1/5. सो 5,000 था ना, इसका 1/5 करोगे तो 1,000 आएगा. 5,000 इंटू 1/5 स्टूडेंट्स. सो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा? 4,000. सेकेंड इफेक्ट इसका अदर एक्सपेंस में लिखेंगे डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन. बेटर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन. सो ये 1,000 राइट ऑफ किया तो ये बिकम 76,120. 76,120. मुझे जहां तक ध्यान है स्टूडेंट, सो फार एज आई रिमेंबर, दिस गोज टू अमोर्टाइजेशन क्योंकि राइट ऑफ कर रहे हैं ना इसके लिए. सो व्हाट आई डिड, डेप्रिसिएशन 75,120 प्लस जो प्राइमरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ किया. अमोर्टाइजेशन का मतलब ही राइट ऑफ होता है ना, तो ये दोनों को ऐड करके आपके रेफरेंस के लिए मैं ये नीचे यहाँ लिख रहा हूँ 75,120 प्लस 1,000. ऐसे हमने टोटल 76,120 लिखा. डेप्रिसिएशन प्लस प्राइमरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, वो दोनों का टोटल. ठीक है. सो दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर क्या था? 3. स्टूडेंट्स का इफेक्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ. एडजस्टमेंट 3 व्हाट वी डिड, लेस फ्रॉम प्राइमरी एक्सपेंसेस. और कहां पे ऐड कर दिया? ऐड टू डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन. ठीक है स्टूडेंट्स. सो ये 2 इफेक्ट था इसका. और कोई एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स? वी हैव डन एवरीथिंग नाउ. तो अब स्टार्ट अभी टोटल. पहले टोटल किसका करते हैं? दोज शेड्यूल्स विच आर रिलेटेड टू P&L. तो P&L कहां से स्टार्ट हो रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो ये तो सेम रहेगा 415. यहाँ भी कोई चेंज नहीं, 1,85,000. बट यहाँ ध्यान से देखो ये 75,000 ये माइनस करते हैं. चेंजेस इन इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस. तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ. ओके, 75,000 माइनस 137,120. सो आंसर आपको नेगेटिव आएगा. कोई बात नहीं, आने तो नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता हमको. 62,120. फिर इसका टोटल करेंगे. सो टोटल नीचे सेम ही रहेगा 62,120. इसका टोटल 103,600 प्लस 5,700, 109,300
अच्छा याद आ गया, ये तो मैं भूल ही गया था, डिबेंचर इंटरेस्ट का हिडन एडजस्टमेंट मैंने कहा था ना। हाँ स्टूडेंट्स देखो वहां पे स्टूडेंट्स डिबेंचर्स क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस 6% डिबेंचर है ना, तो डिबेंचर कितना है 3 लाख, तो उसका 6% इंटरेस्ट कितना होता है 18,000, बट अभी तक हमने कितना रिकॉर्ड किया 9, तो दैट मींस बैलेंस 9,000 इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया, तो आउटस्टैंडिंग हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे अभी, सो प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना आउटस्टैंडिंग होगा 9,000। कैसे 9,000? 3 लाख का 6%, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट का है ना डिवेंचर्स पे, तो 18,000, बट आपने खाली 9 लिखा है, तो बैलेंस 9 विल बी आउटस्टैंडिंग हमारे लिए, सो टोटल टू द आउटर कॉलम विल बी 18। ओके, इसका सेकेंड इफेक्ट भी आएगा स्टूडेंट्स ऑब्वियसली, वो भी मैं बता देता हूं। हमेशा डिबेंचर इंटरेस्ट सेकेंड इफेक्ट कहां जाता है, अदर करंट लाइबिलिटी। कोई अदर करंट लाइबिलिटी हमने बनाया है नहीं, सो नो नीड टू वरी। यहाँ अदर करंट लाइबिलिटी किधर है स्टूडेंट्स, ये है ना, तो यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट। कितना आउटस्टैंडिंग है 9,000, क्योंकि एक ही आइटम है ना, तो वी कैन रिकॉर्ड डायरेक्टली टू बैलेंस शीट। बट अगेन माय एडवाइस ना स्टूडेंट्स, एग्जाम में जितना हो सके नोट्स बनाने का स्टूडेंट्स, ये मेरी गलती है स्टूडेंट्स, आई एक्सेप्ट दैट कि 9,000 आउटस्टैंडिंग था, तो मुझको उसका एक बना के रखना चाहिए था अदर करंट लाइबिलिटी। एग्जाम में अगर ऐसा मिस हो गया तो यू कैन रिकॉर्ड डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट। बट फाइनल अकाउंट्स है ना स्टूडेंट्स, एज फार एज पॉसिबल जितना डिटेल्स हम लोग नोट्स में दे सकते हैं वो देना चाहिए। ओके, सो इसका टोटल 18,000 हो गया, 15 यहाँ पे अदर एक्सपेंस। अच्छा ये दोनों है 4375 प्लस 2,100, ये बैड डेट्स और इसका टोटल 6475 है, बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्योंकि ये प्रोविजन का मुझे डाउट है, ये ओल्ड आरडीडी भी हो सकता है, देखेंगे। 13,200 प्लस 3,800 6,400 6475 2350, इट कम्स टू 3,225 पर चेक कर लूँ। 13,200 प्लस 3,800 6,400 4,375 2,100 2,350 3,225। तो अभी ये सब टोटल हम लोग कहाँ लिखेंगे, पीएनएल में लिखेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 415,000, देयर वाज नो अदर इनकम, सो टोटल इनकम विल बी 415। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 185, नोट नंबर 11 1,85,000, नोट नंबर 12 स्टूडेंट्स ये आंसर जो है ना, ये हमको देखो, ये आंसर जो 75,000, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया 137,120, तो आंसर ये नेगेटिव आया था हमको, दिस वाज नेगेटिव, है ना, ये नेगेटिव था। तो स्टूडेंट जब पीएनएल में भी लिखेंगे तो उसको नेगेटिव भी लिखेंगे, सो दिस विल बी, पहले भी एक बार मैंने किया है 6210 बट नेगेटिव। एम्प्लॉइज बेनिफिट 109,300, फाइनेंस कॉस्ट 18,000, other expenses 3,225 ओके। अभी ये सबका टोटल 1,85,000, बट दिस विल बी सब्ट्रैक्टेड क्योंकि वो नेगेटिव है, माइनस 62,120 प्लस 109,300 प्लस 18 प्लस 76,120 प्लस 3,225 3,58,525 इज टोटल एक्सपेंस, माइनस आपका इनकम 415 माइनस 358,525 56,475। स्टूडेंट्स कोई प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह नहीं दिया आपको, तो फाइनल आंसर भी सेम रहेगा 56,475। देयर इज नो प्रोविजन फॉर टैक्स ना स्टूडेंट्स, करंट ईयर का भी कुछ फाइंड करने तो बोला नहीं, जैसा लास्ट टाइम बोला था, यहाँ पे कुछ नहीं बोला। ठीक है, सो दिस विल गो टू वेयर, हमारा रिजर्व्स में जाएगा। सो दिस इज योर पीएनएल हमने किया, दिस विल गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस। सो रिजर्व्स में यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, मैं पेंसिल से लिखता हूँ, कभी गलती हुआ हो जाता है स्टूडेंट्स, 56,475, सो हम लोग रब करके चेंज कर सकते हैं ना। सो 13,625 प्लस 56,475 प्लस, फिर ये माइनस है इंटरम, माइनस 37,500, सो दिस विल बी 32,600। सो पीएनएल क्लोज हो गया। अब स्टार्ट विथ क्लोजिंग नोट्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट, तो इसका टोटल 392,500, दिस विल बी 75,000 प्लस 32,600, इसका टोटल 107,600 रिजर्व्स का टोटल। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स वेल 40,000 38,000 78,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000,
ये टोटल 4000 अदर नॉन करंट एसेट। स्टॉक एक ही आइटम है 137120। सन्ड्री डेटर्स टोटल 87,000 ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश इन हैंड एक ही आइटम है 750। बस अब ये सब बैलेंस शीट में लिखेंगे। पहला शेयर कैपिटल 3,92,500। रिजर्व्स 1,07,600 है ना, या देन क्या है ये, दिस इज ट्रेड पेएबल 78,000। देन ये क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा फिक्स्ड एसेट बाद में क्लोज करता हूँ स्टूडेंट्स, अभी जो हो गया वो लिख लो। फिक्स्ड एसेट नेक्स्ट पेज पे है। देन दिस इज नंबर 6 नो 4,000। नंबर 7 137,120। नंबर 8 सॉरी 87,000, 87 है ये स्टूडेंट्स, 87। नंबर 9 750। बाकी शॉर्ट टर्म भी नहीं, अदर करंट एसेट भी नहीं, इन्वेस्टमेंट। हाँ फिक्स एसेट रह गया था स्टूडेंट्स, वो अभी ये क्लोज करते हैं। ये हमको दिया ही नहीं है उन्होंने, मैं इसको पेंसिल से ही करता हूँ ताकि 3,50,000 प्लस 0 माइनस 0, सो क्लोजिंग विल बी 3,50,000। 4 लाख प्लस 0 माइनस 0, 4 लाख ही रहेगा। 10,000 प्लस 0 माइनस 0, 10,000। नाउ ओपनिंग प्लस 15 माइनस 0, तो 65। 1,03,000 प्लस 59,400, 103 प्लस 59,400, 1,62,400, सॉरी 2,800 प्लस 720, 3,520। ओके, अभी क्लोजिंग नेट ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन। 350 क्लोजिंग कॉस्ट माइनस क्लोजिंग डेप्रिसिएशन 65,000, 2,85,000। क्लोजिंग कॉस्ट 4 लाख माइनस 162,400 क्लोजिंग डेप्रिसिएशन, so 237,600। 10,000 क्लोजिंग कॉस्ट माइनस 3,520, 6,480। फिर ये लास्ट कॉलम का टोटल हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। 6,480 प्लस 237,600 प्लस 285,000, 5,29,080। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के सामने नंबर 4 529,080। अभी बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। सॉरी 392,500 प्लस 107,600, तो ये हो जाएगा 5,001,000। दिस विल रिमेन 3,10,000 ही रहेगा ये, और कोई तो है नहीं आइटम। 78,000 एंड आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट 9 था, 87,000 हो जाएगा ये, प्लस 3,10,000 प्लस 5,001,100, इट इज 8,97,100। then 529,080 plus 75 plus 4,000, it is 6,08080, 137,120 plus 87,000 plus 750, it is how much, 224,870 plus 60,8080, sorry 60,8080 plus 224,870। अगेन डिफरेंस आ रहा है 832,950, कितने का डिफरेंस है, माइनस 897,100, 64,150, इतना डिफरेंस कैसे आएगा, ये नहीं लिखा ना मैंने। अभी स्टूडेंट देखो, मेरे से मिस्टेक तो नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, अगेन जैसा नॉर्मली मेरे से हो रहा है स्टूडेंट्स, बैंक दिया था ट्रायल बैलेंस में, आपने तो तभी नोटिस कर लिया होगा स्टार्टिंग में, मैं बैंक लिखना भूल गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टार्टिंग ट्रायल बैलेंस द वेरी फर्स्ट आइटम स्टूडेंट्स, ये तो मेरी गलती थी, आई एम रियली सॉरी। पता नहीं हर क्वेश्चन में एक ना एक आइटम में भूल जाता हूँ। सो ये बैंक कितना दिया, 72,900 स्टूडेंट्स, ये मैं लिखना ही भूल गया, 72,900। सो डेफिनेटली ये टोटल चेंज हो जाएगा, 72,900 प्लस 750, 750 प्लस 72,900, 73,650। तो ये कैश इन हैंड चेंज हो गया स्टूडेंट्स हमारा, सॉरी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये ना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेंज हो गया।
ट्रायल बैलेंस में दिया था, मैं पोस्ट करना ही भूल गया उसको। एडजस्टमेंट सब सही किया, एडजस्टमेंट में कोई मिस्टेक नहीं है स्टूडेंट, ये आइटम में लिखना ही भूल गया। इट इज हाउ मच 72,900 सो 137,120 प्लस 87 एंड प्लस 72,900 297,020। स्टूडेंट्स अभी आपको एक मिस्टेक नहीं बताऊंगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको देखो एक बात कही थी कि वो प्रोविजन फॉर डेट्स दिया है ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, उसमें मुझे डाउट है कि वो ओपनिंग आरडीडी है कि क्लोजिंग आरडीडी, ओल्ड आरडीडी जिसको आप कहते हैं ना। तो स्टूडेंट्स अगर ये ओल्ड आरडीडी है तो अगर आपने 12th साल में पढ़ा होगा, देखो बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, या आप एडिशनल बैड डेट्स लिखते हैं प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, है ना, उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स भी कहते हैं आरडीडी को। सो ट्रायल बैलेंस में उन्होंने कहा था सिर्फ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अब मुझे पता नहीं है कि ओल्ड है कि न्यू स्टूडेंट्स, ओके, वहां पे क्योंकि कुछ मेंशन ही नहीं किया स्टूडेंट्स, तो मैंने उसको न्यू समझ के किया सॉल्व, उसको न्यू समझ के सॉल्व किया, बट एक्चुअली वो ओल्ड है। अगर आप न्यू समझ के आप इसको टोटल करोगे ना बैलेंस शीट को, तो आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। अभी मैंने चेक कर लिया उसको स्टूडेंट्स, ओके। मैं स्टार्टिंग स्टूडेंट्स टू बी फेयर ना, मैं क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। पहले से स्टूडेंट्स क्या है ना, सॉल्यूशन करके रखो और जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता। द वे स्टूडेंट्स सॉल्व इट, जैसा स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं ना, मैं भी वैसे ही कोशिश करता हूँ कि स्टूडेंट्स के जैसे ही सॉल्व करो, ठीक है। सो मैं पहले से आंसर डिसाइड करके रख सकता हूँ, वहां से कॉपी करके लिखते रहो, अच्छा नहीं है स्टूडेंट्स वो। सो जैसा आप करते हैं फर्स्ट टाइम, जैसा आप सॉल्व कर रहे हो, मैं भी ऐसा सोच के चलता हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहा हूँ। तो मुझसे भी ऐसी मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स कि ठीक है बैंक बैलेंस तो मैंने गलती की, वो ट्रायल बैलेंस में था लिखा नहीं, बट ये जो है ना स्टूडेंट्स प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये मैंने ऐसा एज्यूम किया था कि इसको मैं ओपनिंग आरडीडी समझ के चल रहा हूँ, क्योंकि वहां मेंशन नहीं किया था, इसके लिए मैंने पेंसिल से भी लिखा था, ओके। बट स्टूडेंट्स अगर मैं इसको ओपनिंग समझ के चलता हूँ ना, तो मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं होगी। तो मैं इसको ना क्या समझता हूँ, ओल्ड आरडीडी समझता हूँ। ओल्ड आरडीडी मतलब ये नेगेटिव लिखूंगा मैं इसको, अभी मैं पेन से कर देता हूँ इसको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 4375। ट्रायल बैलेंस में क्योंकि कुछ नहीं कहा था स्टूडेंट्स कि ये ओल्ड आरडीडी है कि न्यू, तो वी वेर हेल्पलेस, मैंने उसको, और ये माइनस है, प्लस 2100 पॉजिटिव है। सो ये आंसर जो होगा ना 2275, ये नेगेटिव आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब इसका टोटल करेंगे 13200 प्लस 3800 प्लस 6400 माइनस 2275 प्लस 2350, so 23475 answer this will be 23475 ठीक है। सो यहाँ PNL में चेंज होगा स्टूडेंट्स, ये चेंज हो गया, तो इससे आपका एक्सपेंस भी चेंज होगा। ये स्टूडेंट्स मेरी मिस्टेक नहीं थी, टू बी फेयर, है ना, हम लोग कहते हैं टू बी फेयर एंड जस्ट, दिस वाज नॉट अ मिस्टेक। मैंने उसको एज्यूम, क्योंकि वहाँ ट्रायल बैलेंस में कुछ कहा नहीं था उन्होंने कि इट इज क्लोजिंग आरडीडी है कि कैसा है वो, न्यू आरडीडी है कि ओल्ड आरडीडी, तो मैं इसको न्यू आरडीडी समझ के चल रहा, बट इट वाज ओल्ड। सो दिस इज 23475। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1,85,000 माइनस 62,120 प्लस 1,09,300 प्लस 18 प्लस 76,120 प्लस 23475. Okay, so this comes to 349,775. 349,775. 4,15,000 minus 349,775. It comes to 65,225. There was no provision for tax, कुछ भी नहीं था. 65,225 is the final answer. ये कहाँ जाता है? फिर ये जाता है रिजर्व्स में, है ना, रिजर्व्स में जाता है PNL में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा रिजर्व्स है, ये था रिजर्व्स इन सब, नहीं सॉरी नोटबुक में था, सॉरी, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा दिस आंसर। सो एक भी आइटम में स्टूडेंट्स अजम्पशन रॉन्ग हो जाए या पोस्टिंग्स गलत हो जाए ना, तो फाइनल अकाउंट्स में देखो आगे चेंज बहुत करने पड़ते हैं। इसके लिए मैं हमेशा टोटल पेंसिल से करता हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे कि अगर कुछ एज्यूम किया बाद में वो अजम्पशन गलत भी निकल जाए तो आई कैन मेक अ चेंज। हाँ, आप ये कह सकते हो एग्जाम में क्या करेंगे, वो आपका क्वेश्चन करेक्ट है स्टूडेंट्स। अगर ऐसा आरडीडी दिया तो इट शुड बी स्पेसिफाइड एक्चुअली, बट वहां पे क्या लिखा था वो अकाउंटेंट को ही समझ में नहीं आता, ही वाज ए कंफ्यूज अकाउंटेंट। 13625 प्लस 65,225 माइनस 37,500, दिस कम्स टू 41,350। तो ये टोटल चेंज करना पड़ेगा। सो अकाउंटेंट ने हमको ऐसा ट्रायल बैलेंस दिया था, उसमें कोई मेंशन ही नहीं किया था उसमें कि ओल्ड है कि न्यू है। तो दिस इज 116,350।
सो रिजर्व यहाँ पे लिखेंगे 116,350 plus 3,92,500. So 50,8850 plus 3,10,000 plus 87,000. So देखो अभी टाली हो जाएगी स्टूडेंट्स. दिस इज 9,05,850. अभी एसेट साइड देखो, ये तो 529,080 प्लस 75 एंड प्लस 4,000. सो दिस वाज करेक्ट. अभी यहाँ पे 137,120 प्लस 87. फिर हमने कैश बैलेंस चेंज किया था, बैंक बैलेंस. सो दिस वाज 297,000. अब दोनों का टोटल प्लस 60,80,80. सो 9,05,100. फिर डिफरेंस फिर कुल भूल गया लगता मैं स्टूडेंट्स. ये बड़ा प्रॉब्लम है. 9,05,100. फिर लगता कुछ टोटल में ही गड़बड़ किया. स्टूडेंट्स टोटल में गड़बड़ था. दिस वाज 87 एंड बैंक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल यहाँ पे 73,650 है ना. मैंने वो 72,900 लिखा था. अभी रब करके सही किया. टोटल एरर है. एडजस्टमेंट में कोई गड़बड़ नहीं की स्टूडेंट्स. पता नहीं इतना टोटलिंग क्यों एरर हो रहा है. प्लस 87 प्लस 73,650. सो इट इज 29,770 प्लस 60,80,80 इज 9,05,850. अभी टाली हो गया स्टूडेंट्स फाइनली. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके इतना ओके. सी एक तो मिस्टेक मेरा था. ये बैंक ट्रायल बैलेंस में दिया था, मैं उसको लिखना ही भूल गया, तो वो मैंने बाद में लिखा स्टूडेंट. सो ये टोटल चेंज हुआ, तो टोटल मेरे को यहाँ चेंज करना पड़ा. मैंने वो ओल्ड टोटल लिखा था, अभी उसको चेंज करके नया टोटल किया. ओके सो ये तो मैं भूल गया था. एंड सेकेंड ना स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स कैसा था ना, टू बी फेयर ना, वहाँ मेंशन नहीं किया था कि ये ओल्ड आरडीडी है कि न्यू आरडीडी है. तो मैंने ऐसा एज्यूम किया था न्यू आरडीडी है, इसके इसको पॉजिटिव रखा था और दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में लिखा था. बट मेरा बैलेंस शीट टाली नहीं हुआ. मुझे है ना 43, मैं आपको बताता हूँ कैसे मुझे मालूम पड़ा. टू बी फेयर मैंने इसको पहले से सॉल्व करके नहीं रखा है. 4375 इंटू 2 इतने का डिफरेंस आ रहा था बैलेंस शीट में, 8750 का एग्जैक्ट. तो मैं समझ गया अगर पॉजिटिव नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव आंसर बना देंगे तो डबल का इफेक्ट हो जाता है ना स्टूडेंट्स, प्योर मैथ्स. तो मैं उससे समझ गया कि दिस इज एक्चुअली ओल्ड आरडीडी. तो इसलिए फिर मैंने इसको ओल्ड आरडीडी करके ब्रैकेट में लिख लिया. ओके सो दिस वाज माय मिस्टेक. 72,900 भूल गया था. बाकी कहीं मिस्टेक नहीं था स्टूडेंट्स. हाँ टोटल एरर हो गया था मुझसे, बाकी एडजस्टमेंट पोस्टिंग सब ठीक था. ये मैं भूल गया था. एंड दिस बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन दे हैव नॉट स्पेसिफाइड ओल्ड आरडीडी के न्यू आरडीडी, तो मैंने इसको न्यू आरडीडी समझ के पॉजिटिव लिखा था. बाद में मैंने इसको ओल्ड आरडीडी बना लिया क्योंकि मेरी बैलेंस शीट एग्जैक्ट 8750 से डिफरेंस आ रहा था. तो आई रियलाइज कि हाँ ये ओल्ड आरडीडी है, तो मैंने चेंज कर लिया. ठीक है. सो ये आपका एसेट का शेड्यूल, एडजस्टमेंट लिख दिया मैंने यहाँ पे. ये अदर एक्सपेंस का शेड्यूल यहाँ बनाया था. ये नंबर 1 से लेके नंबर 14 तक यहाँ पे है. दिस इज बैलेंस शीट. 392,500, 116,350 ये टोटल है. 50,8850, 310, 78 प्लस 987, 9,05,850, 529,080, 75,000, 4,000, 60,80,80, 137,120, 87,000, 73,650, 29,770. तो बैलेंस शीट टाली हो गई. हाँ ये डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक और डिबेंचर्स दोनों ऐड करके मैंने 3,10,000 लिखा है यहाँ पे. दैट्स ऑल.